आपके शानदार और एंथुजियास्टिक पार्टिसिपेशन इस पिछले 1.5 महीने में एज पार्ट ऑफ दिस टीटीडी प्रोग्राम। जर्नी बहुत ही इनक्रेडिबल रहा है। एंड बिफोर वी स्टार्ट द सेशन टुडे, मैं बुलाना चाहूंगी हमारी चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ऑफ एमवे इंडिया मिस्टर अजय खन्ना को हमारी पार्टिसिपेंट्स को एड्रेस करने के लिए और हमारी जर्नी पे थोड़ा रिफ्लेक्ट करने के लिए। सो अजय सर, ओवर टू यू। Thank you, Vishali. Namaskar. Good morning, Suprabhat. Hope all of you are doing great. Great to see you on your cameras on. Lovely. और आपका जो पैशन रहा है, I think I have been through the TTD sessions. How you have meticulously आप सब नोट बनाए हैं, आपने इंटरेक्शन करी है, आपने फीडबैक दिया है, कल मगन कालरा के साथ काफी मजा भी किया है आपने। मैं I was in Ludhiana. I am in Ludhiana today. We had the health and well-being seminar. Last night, the session was from 7 to 10. I can tell you it went till 11 o'clock. And at 11 o'clock also, there were 400 people in the room, which means, which shows the commitment. जो commitment आप दिखा रहे हैं, वो ज़्यादातर लोग सब, I would say, Lift 360 में की journey से निकल चुके हैं. They might not have been on the TTT. There were some people who were obviously, who are part of the TTT, who were on stage, demonstrated their powerful stories. And I can tell you, ऐसी मैजिकल मीटिंग मैंने आज तक एमबे की हिस्ट्री में नहीं देखी। ऑल अबाउट हेल्थ एंड वेलबींग, इतनी सारी शेयरिंग, इतने सारे लीडर्स के साथ, इतने आई वुड से गोल्डन वर्ड्स, द कीनोट स्पीकर्स, द एबीओज, द डायमंड्स, एवरीबडी वर टॉकिंग अबाउट देयर जर्नी, उनके लिए क्या काम करता है, क्या करना चाहिए। ऑल दोस थिंग्स वर सो सुपर क्रिटिकल. And that's something I think which each one of you will carry the mantle forward. I can tell you, एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन आ रही है और आप जो सब आज इस कॉल पे हैं, एक इसका अहम हिस्सा बनने वाले हैं. You are going to be the pioneers, you are going to be the torch bearers, जो इस मूवमेंट को और इस एमवे की नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ को आगे ले आने वाले हैं. और ये टीटीटी एक बहुत सुनहरा एक आई थिंक चैप्टर है उसमें, जिसमें आपने पार्टिसिपेट करके, एक्टिवली इंगेज करके अपने आप को तो होन किया ही है अपने आप के लिए, but also to all the people you're going to reach out after this with this powerful program. So thank you, congratulations for doing this. Only thing I will encourage आप सबको कि जिन्होंने अपनी 15 असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं करी है, वो अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लें, क्योंकि वो की एक क्राइटेरिया है to obviously kind of us to evaluate also that how you've kind of fared on this program. It's almost like you do class 5th or class 10th or class 12th, but you have not done your assignment. So obviously there's no way to evaluate. And it's not judgment. I'm saying it is just to make sure that each one of us are on the same page. जब हम इस ब्रांड को इस बाहर लेके जा रहे हैं, तो क्या हमारी सीख पूरी है, क्या हमारी जानकारी पूरी है? One is about obviously the skill, the technological piece which we are saying. The other piece is the communication piece. और इस टीटीटी में हमने कम्युनिकेशन को भी हैंडल करना पड़ा और आपकी टेक्नोलॉजी को भी हैंडल करना पड़ा. और कल के जो स्पेशल स्पीकर थे, बड़े अच्छे तरह से उन्होंने दर्शाया. उन्होंने बोला अगर मैं टेक्नोलॉजी सब समझता हूँ, सारी साइंस जानता हूँ, सारे प्रोग्राम जानता हूँ, अगर मैं उसमें 10 हूँ और अगर मेरी कम्युनिकेशन 3 है, तो मेरा कस्टमर क्या, व्हाट विल माय कस्टमर गेट, 10 और 3? एनी गेसेस? द आंसर वाज ऑब्वियसली 3, बिकॉज no matter how much knowledge you have, how much wealth you have kind of accumulated with Live 360, अगर आप उसको communicate नहीं कर पाएंगे, तो output आपका ultimately 3 ही रहेगा. और that's what we're trying to say through the TTT, also through the health and well-being seminars. We have 2 powerful external speakers, internal speakers. Make sure कि आपकी शहर में जब ये health and well-being seminar आ रहा है, तो जो भी इसके लिए qualify किया, they are in the room, they are getting all that information first hand. They're getting all this learning because this is a journey. This is a huge journey. It's a big journey. It's a big potential journey. अगले 4 साल में ये business बहुत नई ऊंचाइयों पे जाने वाला है. We know. We also kind of, some of you might have heard of the Live 360, the new piece which you've added to Live 360. So this is going to be a very exciting space. अपनी assignments complete करिए. इसके बाद what we will do is, जो आपने feedback दिया था कि आपकी assignments लेके हम कुछ 2-3 classes करेंगे जहां पर we will evaluate what good, what bad, what's ugly, क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है, क्या सबसे अच्छा है, ताकि हम सब जान पाए कि ये जो हम कर रहे हैं वो हम ठीक राह पर चल पड़े हैं, नहीं पड़े हैं, या हमें फिर भी थोड़ा सा अपने आप को ट्वीक करने की जरूरत है. तो दैट इज, यू कैन एक्सपेक्ट
in the coming couple of weeks. We will set up those 2 or 3 sessions. We will go through your assignments, not every one of them, but we'll take examples and go through so we understand कि जो हमारी सीख है हम उसको ठीक तरह implement, apply कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और journey में we are going to be with you together even beyond that. Beyond that, whoever kind of obviously completes this, they will surely get a internal certificate from us, but they will also qualify for the external certification at a subsidized price where we have done a tie-up. So that's also in store for you. So there's a lot of excitement in store for you. आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं इस लिव 360 जर्नी में. यू आर रियली हेल्पिंग पीपल लिव एक्चुअली हेल्थियर बेटर लाइफ. तो ये शानदार करते रहिए काम. आज का सेशन मगन का आई एम श्योर इज गोइंग टू बी equally exciting with the case studies. I hope you understand D1, S1, and your kind of fun way of learning it. बड़ा interesting way में उन्होंने आपको सिखाया और उस सबको आपको practice भी करना है. The point of taking all this is how we are practicing it every day as we are going into real life situations, as we are meeting our customers, as we are meeting our prospects. So make sure ये learnings को भूले नहीं, इसको refresh करते रहिए, इसको practice करते रहिए, क्योंकि practice makes you perfection, will get you to perfection. So thank you once again, and back to you, Vishali, and look forward to obviously catching you at the health and well-being seminar soon. थैंक यू सो मच अजय सर, आपके इंस्पायरिंग वर्ड्स और आपकी गुड विशेस के लिए जो हमारी सभी पार्टिसिपेंट्स के साथ रहेगी. नाउ आई नो कि आप सब ईगरली वेट कर रहे हैं हमारी इंस्ट्रक्टर ऑफ द डे मगन कालरा के साथ और भी डीप डाइव करने के लिए आज की टॉपिक में. So without further ado, I'll pass it on to Magan to start the session. Magan, over to you. Thank you, Vishali. All right, so good morning, everybody. बहुत 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 अच्छा लग रहा है आप सब लोग इधर हैं. Thank you very much. And we're starting bang in time. So I know once again, early morning time, doing all your morning routines, फिर भी आप यहाँ पर हैं. Clearly दर्शाता है कि आपकी commitment क्या है. So great. मैं आज की शुरुआत आपको एक कहानी सुना के करना चाहता हूं, और ये कहानी है एक छोटे बच्चे की जो कि अपने पेरेंट्स के पीछे पड़ा हुआ था कि लेट्स गेट अ पेट एट होम. एक पेट लेकर आते हैं घर पे. सो यूजुअली व्हाट काइंड ऑफ पेट्स डू वी हैव? किस तरीके के पेट्स होते हैं? डॉग्स होते हैं, कैट्स होते हैं, पैरट्स होते हैं. तो ये सब उन्होंने सोचा. तो वो जो छोटा बच्चा था वो अपनी मदर के पास गया, बोला मॉम मॉम प्लीज लेट्स गेट अ पेट एट होम, लेट्स गेट अ डॉग. तो मॉम ने बोला कि नहीं 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 नहीं, हम डॉग नहीं लेके आ सकते, डॉग बहुत डेंजरस है, वो तुम्हें बाइट कर सकता है, मैं डॉग नहीं लेके आ सकती. और उसकी मदर भी थोड़ी डरी हुई थी. तो अब ये बच्चा सोच रहा है तो फिर हम क्या लेकर आए, क्या लेकर आए, क्या लेकर आए. एंड सडनली ही थिंक्स ऑफ अ कैट. हाँ, टॉर्टोइस. शीला कह रही है कि हाँ टॉर्टोइस भी लेके आते हैं. यस, लेकिन बाय द वे इलीगल है टॉर्टोइस एज अ पेट. एनीवे, गुड मॉर्निंग घनश्याम जी. सो उसने बोला कि मॉम अच्छा डॉग नहीं तो फिर कैट लेकर आते हैं, कैट तो मुझे बाइट नहीं करेगी. तो मॉम ने बोला हाँ कैट, देखो कैट बाइट नहीं करेगी, लेकिन कैट कितनी एलर्जी देती है क्या तुम जानते हो? तो कोई कैट नहीं आ सकती है. तो लड़का थोड़ा सा उदास हो जाता है, कहते हैं क्या मम्मी ना डॉग को मान रही हैं ना कैट को मान रही हैं. और वो सोचता रहता है, सोचता रहता है. फिर वो सोचता है कि अच्छा पैरट तो लेके आ सकते हैं, पैरट तो काटेगा भी नहीं, और वो तो एलर्जी भी नहीं देगा, और वो तो पिंजरे में बंद रहेगा. तो कहता है मॉम मॉम प्लीज हम ना पैरट लेकर आते हैं, वो देखो बिल्कुल काटेगा नहीं, मेरे को कोई एलर्जी नहीं देगा. तो मॉम ने बोला ठीक है मैं समझती हूँ कि वो तुम्हें काटेगा नहीं, एलर्जी नहीं देगा, लेकिन क्या तुम जानते हो कितना शोर करते हैं? तो नो पैरट्स. तो बेसिकली जो उसकी मदर थी वो उसको डिसुएड कर रही थी कि नहीं नहीं नहीं. और जो उनका बेटा था वो चाह रहा था ना मम्मा प्लीज 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 लेट्स गेट अ पैरट होम. एंड फाइनली दिस लिटिल बॉय, ये छोटा लड़का सोचता है हाउ अबाउट अ फिश, हाउ अबाउट अ फिश. जैसे कि शीला ने बोला टॉर्टोइस, और लड़के ने सोचा कि मछली क्यों नहीं पाल सकते हम मछली लेकर आएंगे. वीरा वीरा रेड्डी कहते हैं काओ. हाँ काउस, लेकिन आजकल के घरों में शायद जगह की कमी बहुत है वीरा जी, सो आई डोंट थिंक काउ इज पॉसिबल. सो एनीवे नाउ ही गोज टू हिज मदर वेरी एक्साइटेड एंड ही सेज मॉम डॉग मुझे काट सकता था, कैट मुझे एलर्जी दे सकती थी, पैरट शोर मचाएगा, लेकिन हम फिश लेकर आएंगे.
ना वो मुझे काटेगी, ना कोई एलर्जी होगी, और शोर तो बिल्कुल है ही नहीं, वो तो सिर्फ एक कोने में रहेगी और दिन में एक बारी आपने खाना डालना है, दैट्स इट। तो अब मॉम के पास भी कोई जवाब नहीं था इस बात का। शी हैड नो रीबटल। अब वो क्या बोले? मैंने बोला अच्छा ठीक है, रिलक्टेंटली, कि हाँ ठीक है हम लेकर आएंगे। ओके, बिमल जैन से लव बर्ड्स, श्योर। तो अगले दिन वो जाते हैं एट दिस एक्वेरियम शॉप, एंड एज दे एंटर दिस शॉप, यू नो, दे बोथ सी एक छोटे से टैंक में एक छोटी सी गोल्डफिश पड़ी है। वो बेटा उस गोल्डफिश को देखता है और बहुत एक्साइटेड हो जाता है, कहता है मॉम हम यही वाली लेंगे, चलो 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 इसको ले लो, लेट्स गो होम। मॉम ने बोला अरे तुम बहुत ज्यादा जल्दी एक्साइटेड हो जाते हो, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो, अभी तो बस हम आए हैं, अभी देखते हैं और क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो वो थोड़ा आगे जाते हैं, और जब वो थोड़ा आगे जाते हैं वो देखते हैं कि थोड़े से और बड़े टैंक में थोड़ी सी और बड़ी गोल्डफिश है। अब जो बेटा है वो कंपेयर कर रहा है कि ये तो छोटी थी, ये उससे बड़ी है, तो मॉम लेट्स टेक दिस वन होम, इसको घर लेकर जाते हैं। मॉम ने बोला अरे रुको, तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो, बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हो, अभी हम आए हैं, अभी हम देख रहे हैं, तो लेट अस सी मोर ऑप्शंस, और ऑप्शंस देखते हैं। ठीक है, वो आगे बढ़ते हैं, और जब वो आगे बढ़ते हैं तो और बड़े टैंक में और बड़ी गोल्डफिश देखते हैं। अब बच्चे से ज्यादा मॉम हैरान है, क्योंकि मॉम को पता है कि ऐसा कैसे कि एक ही तरीके की फिश 3 अलग-अलग साइजेस में, जबकि गोल्ड फिश तो छोटी होनी चाहिए। तो वो शॉपकीपर के पास जाती है, कहती है लिसन, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हाउ कम यू हैव द सेम साइज ऑफ सेम टाइप ऑफ फिश, ऐसा कैसे कि आपके पास एक ही तरीके की मछली 3 अलग-अलग साइजेस में है? तो शॉपकीपर कहता है मैम ये बहुत आसान है, बहुत सिंपल सी बात है, मैं डिसाइड करता हूं size of the fish by deciding the size of the tank। मैं डिसाइड करता हूं कि फिश का क्या साइज होगा, कैसे? ये डिसाइड करके कि टैंक का क्या साइज होगा। तो मदर ने बोला मतलब? तो उसने बोला कि देखिए अगर मुझे छोटी मछली चाहिए तो मैं उसे छोटे टैंक में रखता हूँ, और अगर मुझे मीडियम साइज की मछली चाहिए तो मैं उसको मीडियम टैंक में रखता हूँ, और अगर मुझे बड़ी मछली चाहिए तो मैं उसे बड़े टैंक में रखता हूँ। नाउ व्हेन आई रेड दिस स्टोरी, जब मैंने ये कहानी पढ़ी, मुझे रियलाइज हुआ कि वाओ मैन, अगर एक शॉपकीपर डिसाइड कर सकता है फिश का साइज बाय डिसाइडिंग द साइज ऑफ इट्स टैंक, तो फिर हमारी सक्सेस का, हमारे ड्रीम्स का साइज कौन डिसाइड करता है? इज देयर अ टैंक दैट वी हैव? क्या हमारा भी कोई टैंक है? एंड आई एम श्योर हम सब समझते हैं कि हमारा टैंक हमारा दिमाग है, हमारी सोच है। जितनी बड़ी हम अपनी सोच कर सकते हैं उतनी बड़ी हम सक्सेस पा सकते हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि as wellness coaches, as people who are in this business, हमें मौका मिला है अपने आप को, अपने थॉट्स को एक्सपैंड करने का। यस रश्मि जी, यस भूपेंद्र जी, एब्सोल्युटली राइट, यस रक्षा, अपने थॉट्स को एक्सपैंड करने का, और सिर्फ अपने को नहीं, जिन लोगों को हम कोच कर रहे हैं उनके पोटेंशियल को भी एक्सपैंड करने का, उनकी हेल्थ को भी बेहतर बनाने का। यस विमल, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। तो उसी 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 थॉट को, थैंक यू मृगांका जी, थैंक यू। तो उसी थॉट को आगे बढ़ाते हुए वी आर डाइविंग इनटू द सेशन वंस अगेन टुडे। तो मैं फटाफट क्विकली गो बैक टू व्हाट वी वर डूइंग यस्टरडे। Raghuram says absolutely true, we have to expand our thoughts because we don't know our potential. Super Raghuram. All right. And Manohar says yes, we have the immense power to expand it. बहुत अच्छे। Dr. Kalpana, welcome back. Thank you Sangeeta ji, thank you। Okay, so let's dive into our session today। Okay, तो सबसे पहले हमने कल सीखा कितने डेवलपमेंट लेवल्स हैं, कितने डेवलपमेंट लेवल्स हैं या मैच्योरिटी लेवल्स हैं? 1, 2, 3 या 4? थैंक यू भक्तू, थैंक यू। ऑलराइट, 4 4 4 4 4 4, आई गॉट इट, एब्सोल्युटली। तो हमने बात करी 4 डेवलपमेंट लेवल्स हैं।
D1, D2, D3, D4, अजय भी इसकी बात कर रहे थे, रिमेंबर? और बोला D1, S1, मुझे लगा अरे अजय भी सेशन में थे। संजीव एब्सोल्युटली राइट, D1, D2, D3, D4, ब्यूटीफुल। एंड D1 का हमने केस स्टडी करा था और हमने बोला था कि हाँ, एक एंथुजियास्टिक बिगिनर। मैंने आपको एग्जांपल दिया था अपना कि जब मैं छोटा था मैं साइकिल चाहता था और मैं अपने पापा के पीछे पड़ गया, पापा पापा मुझे साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए। बहुत एंथुजियाज्म था, बहुत मोटिवेशन था, बहुत ज्यादा, लेकिन चलानी नहीं आती थी, कॉम्पिटेंस लो था। तो अब जब मैं रिफ्लेक्ट करता हूं उस बात पे, तो मैं D1 कैटेगरी में था, एंथुजियास्टिक बिगिनर था। और काफी चीजों में हम लोग अभी भी शायद D1 ही होंगे। मेरे जैसे कुछ लोग शायद हेल्थ के मामले में D1 है, लेकिन आप सब कोचेस D4 हैं। ब्यूटीफुल। यस राजेश, S1 D1 के लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओके, सेकंड वाज डिसइल्यूजन लर्नर। डिसइल्यूजन लर्नर, डिसइल्यूजन लर्नर कौन? जो शुरू तो एक्साइटमेंट से करते हैं, थोड़ी कॉम्पिटेंस पा लेते हैं, लेकिन उसके बाद फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, थोड़ा डिसइल्यूजन हो जाता है, मोटिवेशन डाउन हो जाता है, कमिटमेंट डाउन हो जाता है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि सोचिए कि हमारे बिजनेस में कोई हैं जिन्होंने बड़ी एक्साइटमेंट से जिम ज्वाइन कर लिया, मैं जिम करूंगा, रोज सुबह जा भी रहे हैं, बहुत एक्साइटमेंट है, पूरे डिसिप्लिन है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब रियलिटी हिट करती है कि अरे ये तो रोज जाना है यार, ओ आप अब तो मैं ये नहीं खा सकता, मैं ये नहीं पी सकता, अरे मेरे मसल में दर्द, तो सारी फ्रस्ट्रेशन जो है हमारी मोटिवेशन डाउन कर देती है। D2। D3 केपेबल है बट कॉशियस है। केपेबल बोले तो उनकी कॉम्पिटेंस अच्छी है, हाई है, मॉडरेट टू हाई है, लेकिन उनका जो मोटिवेशन लेवल है या कमिटमेंट लेवल है वो ऊपर नीचे होता रहता है। कुछ चीजों में ऊपर है, कभी ऊपर हो जाता है, कभी नीचे हो जाता है। मैंने आपको अलग अलग एग्जांपल्स दिए थे, बट मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ अपनी वाइफ का। फॉर एग्जांपल, वो एक बहुत ही अच्छी ड्राइवर है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू ड्राइविंग ऑन द हाईवे, जब हाईवे पे चलने की बारी आती है या ट्रक्स को ओवरटेक करने की बारी आती है या कोई टाइट स्पॉट होता है पार्किंग में, उसमें पार्क करने की बारी आती है, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं ड्राइव नहीं करूंगी, मैं नहीं, तुम ड्राइव कर लो, नहीं तुम पार्क कर लो, है ना? और कई बार मौसम अच्छा तो कहते हैं चलो चलो ड्राइव पे चलते हैं, ड्राइव पे चलते हैं, आई विल ड्राइव। तो कुछ मोमेंट्स में तो एक्साइटमेंट बहुत अच्छी है, मोटिवेशन बहुत अच्छी है, बट कुछ चीजों में डाउन। एंड फाइनली D4, जिनका कॉम्पिटेंस भी हाई है और कमिटमेंट भी हाई। okay. तो अब देखते हैं इन सबसे डील कैसे करना है। तो कल हम प्रिया से मिले थे, इफ यू रिकॉल। आज देखते हैं हम किन से मिलते हैं, लेकिन उससे पहले वेरी वेरी क्विकली आपको एक बारी फिर से मॉडल दिखा देते हैं। जो जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस है, जिसमें डायरेक्टिव बिहेवियर है, लो टू हाई। तो हमने बोला था कि एज अ सिचुएशनल लीडर हमारा बिहेवियर डायरेक्टिव होना चाहिए, लेकिन किस डिग्री तक डायरेक्टिव होना चाहिए डिपेंड करता है हम किससे डील कर रहे हैं। वो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपकी स्क्रीन पर, और जो वर्टिकल एक्सिस है उस पे सपोर्टिव बिहेवियर, और वो दर्शाता है डिग्री टू विच हमको अपना सपोर्टिव बिहेवियर दिखाना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन हम किन से डील कर रहे हैं। तो अगर हम D1 से डील कर रहे हैं तो हमारा कोचिंग स्टाइल S1 होना चाहिए, विच मीन्स ज्यादा डायरेक्शन देनी है और कम सपोर्ट देनी है। और डायरेक्शन और सपोर्ट में क्या फर्क था? डायरेक्शन इज ऑल अबाउट टेलिंग, बताना क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, मोर ऑफ गाइडिंग, मोर ऑफ इंस्ट्रक्टिंग। और फिर वो सब बता के चेक करना है उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, मॉनिटर करना है कैसा कर रहे हैं। लेकिन गुस्से से नहीं, गुस्से वाले टीचर इंस्ट्रक्शंस नहीं, प्यार से, रिस्पेक्टफुली, पोलाइटली। लेकिन फिर भी हमारा बिहेवियर डायरेक्टिव है कि आप ऐसा कीजिए, फिर ऐसा कीजिए, फिर ऐसा कीजिए। ये नहीं बोला ऐसा करो, वैसा करो, नीचे बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, शट अप, बोला नहीं, वो वाली टोन्स नहीं। एंड आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड दैट। ओके। और फिर जो हमारा D2 है उसके लिए सपोर्ट भी हाई होनी चाहिए और डायरेक्शन भी हाई। और सपोर्टिव बिहेवियर क्या है? लिसनिंग टू पीपल, encouraging their efforts, and most importantly उनको बताना कम है, सुनना ज्यादा है। और जो भी हम एक्शन प्लान कर रहे हैं, जो भी हम गोल सेटिंग कर रहे हैं, जो भी हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, उसमें अपने कोची को, अपने क्लाइंट को इन्वॉल्व करना, बिकॉज उनका कॉम्पिटेंस हाई है, उनको पता है कॉम्पिटेंस हाई है, राइट? सो फिर S3 एंड S4 लाइक दैट।
तो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट हीरो की तरफ। आज कल हम प्रिया से मिले थे, आज देखते हैं हम किससे मिलते हैं। ऑलराइट, आज हम मिल रहे हैं अर्जुन से, और ये पिक्चर शायद आपको बता रही है कि अर्जुन कौन है। ओके, ऑलराइट। सो जो अर्जुन है, ये इनकी एज है करीबन लेट्स से 28 इयर्स ओल्ड, और ये एक आईटी प्रोफेशनल है। ओके, मान लेते हैं कि मान लीजिए ये पुणे से हैं। और अर्जुन जो है पहले एंगेज रहे हैं अपनी फिटनेस में और वेलनेस रूटीन में, और उनको जिम जाना भी पसंद था, और कभी कभी वो हेल्दी भी खाते हैं। लेकिन इसके बावजूद अर्जुन को एक चैलेंज महसूस होता है टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। उनकी जो रूटीन्स हैं, जो हेल्थ एंड वेलनेस रूटीन्स हैं, फिटनेस रूटीन्स हैं, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं ला पाते। और क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती तो उनका मोटिवेशन कम हो जाता है, स्पेशली जब उनके ऊपर काम का प्रेशर ज्यादा होता है, बिकॉज वो एक आईटी प्रोफेशनल है, जॉब करते हैं। तो अब चैलेंज ये है कि अर्जुन नोज कि फिट रहने की अहमियत क्या है, लेकिन फिर भी स्ट्रगल करते हैं कि मैं कैसे कंसिस्टेंट रहूं अपनी रूटीन में, है ना। वो अपने यही पाते हैं कि यार मैं शुरू तो अच्छा करता हूँ, लेकिन बाद में सब गड़बड़ हो जाता है, और बहुत जल्दी आई फॉल बैक इनटू माय ओल्ड हैबिट्स। कुछ ही हफ्तों में पुरानी आदतों में वापस चला जाता हूँ। तो उनकी एक कोच है जिनका नाम है मीरा। ओके, मीरा अर्जुन की वेलनेस कोच हैं, और वो सोचते हैं कि ओके, अब मैं कौन सा सिचुएशन लीडरशिप स्टाइल लगाऊं इनके साथ, ताकि मैं उनको सपोर्ट कर सकूं, उनको ड्रैग कर सकूं। तो वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं S2 करूं, क्योंकि अर्जुन को थोड़ा बहुत तो पता है, मगर उनका मोटिवेशन अभी लो है। ओके, तो आप बताएं अर्जुन का मोटिवेशन लो है या क्या है, या उनका उनका अभी मेच्योरिटी लेवल, डेवलपमेंट लेवल क्या है। तो ही इज 28 इयर्स ओल्ड, पहले फिटनेस और उस रूटीन में थे, एंगेज थे, फेसिंग अ चैलेंज इन मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी इन हिज रूटीन्स एंड ऑफ्टन लूजिंग मोटिवेशन व्हेन फेसिंग हाई वर्क प्रेशर। तो क्विकली आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि अर्जुन कौन है। D3 है, D3 नहीं है, D3 नहीं है, D2 है, यस D2 है, D2 है, वेरी गुड, यस। नहीं वीरेंद्र जी, D3 नहीं है, D2 है, D2 देखिए कुछ कॉम्पिटेंस है, लेकिन इस वक्त मोटिवेशन लो है, इस वक्त मोटिवेशन लो है। यस यस भूपेश, यस रघु, एब्सोल्युटली राइट, डॉक्टर कल्पना you're राइट, रीना एक्सीलेंट, कोचेस वैल्यू, ओके। लोहित लोहित you're राइट, अर्चना आप भी ठीक कह रही हैं। हाँ राहुल, सही बात है, लो कमिटमेंट है। शीला एब्सोल्युटली राइट, शीला यू आर हिटिंग द नेल ऑन द हेड टुडे। ग्रोवर साहब वेलकम बैक, ही इज D2, यस यस मदन लाल, ही इज D2, सरिता D2, भक्तु यस D2, सो यू गॉट इट। तो वो D2 है, और D2 के लिए कौन सा स्टाइल हमको यूज करना है, या उनकी कोच जो मीरा है उनको कौन सा स्टाइल यूज करना चाहिए। Of course. S2. Yes, absolutely. It has to be S2. Set is up. You are too good. एकदम से उपासना, you too, बहुत अच्छे। S2. So let's see. उनकी कोच से मिलते हैं, देखते हैं कि क्या बात हुई। ओके, सो अर्जुन मीट्स मीरा, जो कि एक वेलनेस कोच है, और उनकी बातचीत होती है, और मीरा कहती हैं कि अर्जुन, लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू योर वेलनेस जर्नी। एंड आई एम श्योर, देखिए आप सबको पता है कि एक रेपो बिल्डिंग की अहमियत क्या होती है और शुरुआत कैसे करनी है। आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट, लेकिन एक स्ट्रेट अवे एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कैसे करनी है। तो मीरा कहती है अर्जुन चलिए, आफ्टर ऑल द रेपो बिल्डिंग, हाय हेलो ग्रीटिंग्स के बाद, कहती है चलो अब सीधा सीधा बात करते हैं आपकी वेलनेस जर्नी के बारे में। मैं यहाँ पे तुम्हें मदद करने के लिए हूँ, आई एम हियर टू हेल्प यू, लेकिन हमें फिगर आउट करने की जरूरत है कि कंसिस्टेंसी चैलेंज क्यों है आपके लिए, क्या हो रहा है, रीजन क्या है, व्हाट इज द चैलेंज। राजेश you're right, absolutely, high direction, high support. Manoj you're right, ग्रोवर साहब एब्सोल्युटली राइट, S2। तो बातचीत करते हैं, तो फिर अर्जुन कहता है कि हाँ मीरा, आई रियली वांट टू स्टिक टू इट, बट विद ऑल द वर्क प्रेशर इट्स टफ टू कीप अप। मैं करना तो चाहता हूं, लेकिन वर्क प्रेशर इतना ज्यादा है, मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूं, है ना। तो मीरा कहते हैं कि ठीक है, चलो उसको टैकल करते हैं। How about we start by identifying your specific stressors and concerns? क्यों ना ऐसा करें
कि पहले ये देखें कि तुम्हारा स्पेसिफिक कंसर्न क्या है, किस चीज से तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है, क्या चक्कर क्या है, थोड़ा सा गेट डीपर इनटू द इशू, है ना, कोर देखते हैं उसका क्या है। तो उसके बाद कोर देखते हैं और फिर एक प्लान को क्रिएट करते हैं अर्जुन के साथ मीरा ने। तो उन्होंने बोला, अर्जुन, हाउ इज द प्लान वर्किंग आउट, फीलिंग एनी बेटर अबाउट मैनेजिंग स्ट्रेस, प्लान कैसा चल रहा है, तुमको थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है अपना स्ट्रेस मैनेज करके? अर्जुन कहता है, देखिए चैलेंज तो है, बट हाँ, एक प्लान होना इट डेफिनेटली हेल्प्स, एक प्लान होना इट डेफिनेटली हेल्प्स। तो मीरा कहती हैं, ठीक है, गुड टू हियर, एक काम करते हैं, इसको फाइन ट्यून करते रहते हैं। तो देखिए अभी मीरा ने क्या करा, मीरा ने पहले को क्रिएट करा प्लान, विच मीन्स उसने अर्जुन को इन्वॉल्व करा। को क्रिएट मतलब उसको भी इन्वॉल्व करा, खुद भी इन्वॉल्व हुए और एक प्लान बनाया। और फिर अब पूछ भी रही है कि कैसा चल रहा है और उनकी बात सुन रही हैं और ये भी बोल रही हैं कि हाँ अच्छा ठीक है मैं समझती हूँ, लेकिन चलो इसको थोड़ा फाइन ट्यून करते हैं। तो इसका मतलब डायरेक्शन भी दे रही हैं, तो वो सपोर्ट भी कर रही हैं और डायरेक्शन भी दे रही हैं। फिर कहते हैं हमें ये श्योर करना है, हमको ये इंश्योर करनी है बात, दैट यू आर गेटिंग क्लोजर टू योर गोल्स एवरी डे। तो ये क्या है, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, सपोर्ट भी है और डायरेक्शन भी है, दोनों चीज वो साथ साथ कर रहे हैं। और काफी सेशंस के बाद, कुछ चेक इन्स के बाद कोच कहती हैं, हे अर्जुन कैसा चल रहा है सिंस वी लास्ट टॉक्ड, है ना, एंड आई एम श्योर आप भी अपने अपने क्लाइंट्स को okay, grounding main thing, he's not connected to coach earlier, work pressure is not cause, we'll see, we'll find out, okay। तो तो वो कहती हैं कि कैसा चल रहा है सिंस वी लास्ट टॉक। देखिए और मैं ये बोल रहा था कि हम भी तो अपने क्लाइंट्स के साथ चेक इन करते हैं ना हर थोड़े टाइम में, समटाइम्स ऑन डेली बेसिस, समटाइम्स ऑल्टरनेट डेज, राइट। ये जो 100 डेज का प्लान लेके जा रहे हैं तो हमें तो रोज ही चेक इन करना है, रोज ही उनसे बात करनी है, तो कैसा चल रहा है। फिर अर्जुन कहता है कि मीरा, आई हैव बीन मोस्टली फॉलोइंग आवर प्लान बट वर्क गॉट क्रेजी एंड आई हैव मिस्ड फ्यू वर्कआउट्स। देखो ज्यादातर तो फॉलो कर रहा हूँ लेकिन काम फिर से बहुत 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 प्रेशर था एंड इसलिए मेरे कुछ वर्कआउट्स मिस हो गए। तो मीरा ने बोला कोई बात नहीं अर्जुन, ऐसा होता है, इट हैपेंस, लेट्स फिगर आउट हाउ टू हैंडल बिजी डेज बेटर। तो जब आप बिजी हो जाएं उनको बेटर कैसे करें, ये देखते हैं। तो फिर से अगेन से डायरेक्शन। अर्जुन कहते हैं कि ठीक है, थैंक्स मीरा, आई अप्रिशिएट योर अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आप मेरे को समझती हैं और मुझे सपोर्ट कर रही हैं। मीरा कहते हैं एब्सोल्युटली अर्जुन, हम इसमें इकट्ठे हैं, वी आर इन दिस टुगेदर, लेट्स फाइंड वेज टू कीप यू ऑन ट्रैक। चलिए देखते हैं किस तरीके से आपको हम ट्रैक पे रख सकते हैं। और फिर आगे बात होती है, अर्जुन, आई हैव नोटिस्ड यू बीन मोर कंसिस्टेंट लेटली, योर डेडिकेशन इज कमेंडेबल, हाउ डज इट फील। तो अब वो उसको अप्रिशिएट कर रही हैं। तो याद कीजिए सपोर्टिव बिहेवियर में ये भी होता है एनकरेजिंग एफर्ट्स। तो वो उसको कह रही है कि ये तो कमेंडेबल है, तुम्हारी डेडिकेशन कमेंडेबल है। ओके, शुचि सेज प्रीवियस स्टाइल स्लाइड प्लीज, देख लीजिए, यू कैन सी द प्रीवियस स्लाइड। Once you see it, then I can move it. Okay, you're welcome. No problem. My pleasure. तो फिर अर्जुन से जब उनकी बात होती है तो वो कहते हैं कि देखिए यू बिन वेरी कंसिस्टेंट लेटली, तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी डेडिकेशन कमेंडेबल है। कैसा महसूस हो रहा है अब तुमको? अर्जुन कहता है इट फील्स ग्रेट मेरा, आई थिंक आई एम फाइनली गेटिंग द हैंग ऑफ इट, है ना। तो धीरे धीरे अर्जुन का भी थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है। और फीमा कहती है दैट्स द स्पिरिट, कीप अप द गुड वर्क, बट रिमेंबर, मगर याद रखो, वी स्टिल हैव सम ग्राउंड टू कवर, लेट्स नॉट लूज मोमेंटम। तो अब देखिए उस जब मीरा उनसे बात करती है ना तो उनको सपोर्ट भी करते हैं, दैट्स द स्पिरिट, एनकरेज करा, सपोर्ट करा, कीप अप द गुड वर्क, फिर से सपोर्ट करा, बट रिमेंबर, लेकिन याद रखो। अब डायरेक्शन भी दे रही हैं कि देखिए हमको काफी सारा ग्राउंड अभी कवर करना है, अभी हमारी वेलनेस जर्नी बस शुरू हुई है ना, देयर 100 days टू गो, मे बी वी आर ऑन द 15th डे और द 30th डे, है ना, देयर स्टिल 60-70 days मोर टू गो, सो लेट्स नॉट लूज मोमेंटम। तो डायरेक्ट कर रही है कि देखिए मोमेंटम लूज मत करिए, है ना। सो यस एब्सोल्युटली राजेश, तो डायरेक्शन भी दे रही है। संजीव ये S3 नहीं है, ये S2 स्टाइल है, सपोर्ट भी इक्वल है और डायरेक्शन भी इक्वल है। और जब मैं बोल रहा हूँ इक्वल, ऑफ कोर्स हम उसका मापदंड नहीं कर रहे हैं, ये नहीं बोल रहे अगर ये आधा किलो है तो ये भी आधा किलो, ठीक है, प्लस माइनस थोड़ा चलेगा,
लेकिन मोटे मोटे तौर पे सपोर्ट भी करना है और डायरेक्शन भी देना है ना। जैसे हमारे जो टीनेजर्स होते हैं कई बार, है ना, एज पेरेंट्स हमको उनको सपोर्ट भी करना पड़ता है और थोड़ा सा लगाम भी खींच के रखनी पड़ती है, डायरेक्शन भी देनी पड़ती है। अदरवाइज हमें पता है वो शायद हाथ से बाहर निकल सकते हैं, और शायद हमारे पेरेंट्स ने भी ऐसा करा, और अगर हमारे पेरेंट्स ने ऐसा नहीं करा तो फिर सम ऑफ अस डिड नॉट लाइक इट, है ना। तो इसमें सिचुएशन लीडरशिप में एक चीज और भी बड़ी है, वो ये कि अगर स्टाइल का मिसमैच हो जाए, सो फॉर एग्जाम्पल अगर D2 है और उसको मैं S1 की तरह डील करूं या S3 की तरह डील करूं या S4 की तरह डील करूं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो ये फिटमेंट बहुत जरूरी है, इसका आपने ख्याल रखना है। ओके संजीव जी, आई होप यू गॉट इट। ओके ग्रेट। ओके, सो लेट्स डू अ रैपिड फायर वेरी वेरी क्विकली, और देखते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं। तो फिर से एक बारी तैयार हो जाइए, हम आपकी स्क्रीन पे लेके आने वाले हैं, लेकिन दरायस, आई लव इट व्हाट यू सेड। ओके, कभी नरम कभी कड़क, आइडेंटिफिकेशन इज द की। राजेश एकदम सही बात बोली, आइडेंटिफिकेशन इज द की। इनफैक्ट मैं आपको एक एक जोक सुनाता हूँ। एक बारी वेरी रिलेटेड टू दिस, ओके व्हाट वी सेइंग। एक बारी एक आदमी को लगता है कि उसकी पूरी बॉडी में दर्द है, वो जहां पे भी हाथ लगाता है उससे दर्द हो रहा होता है, दर्द हो रहा होता है, दर्द हो रहा होता है। तो वो डॉक्टर के पास जाता है, कहता है डॉक्टर मेरे ना पूरी बॉडी में दर्द है, मैं जहां पे भी हाथ लगा रहा हूँ ना मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है मुझे। तो डॉक्टर कहता है बड़ी अजीब बीमारी हो गई यार, ये क्या हो गया। तो डॉक्टर उसको दवाई दे देता है। 2-4 दिन के बाद फिर से वापस आता है, कहता है दवाई खाता हूँ तो ठीक होता है, लेकिन फिर भी जहां पे भी हाथ लगा रहा हूँ ना मुझे बड़ा दर्द हो रहा है, मुझे बड़ा दर्द हो रहा है। अब डॉक्टर को समझ में नहीं आता, फिर कोई और दवाई चेंज करता है, और फिर भी वो 2-4 दिन के बाद वापस आता है, कोई फर्क नहीं। फाइनली डॉक्टर कहता है कि यार ये चक्कर क्या है, तो उसकी पूरी बॉडी का एक्सरे करते हैं कि देखते हैं कि क्या चक्कर है। और उसमें उनको पता लगता है असल में इस पेशेंट की उंगली की हड्डी टूटी हुई है, तो इसलिए जहां पे भी हाथ लगाता है दर्द होता है। तो आइडेंटिफिकेशन इज द की। देखिए किसी भी उसमें, हाँ फिंगर टूटी हुई है नीलेश, यूर राइट, फिंगर प्रॉब्लम। ओके, सो सो आइडेंटिफिकेशन इज द की। डायग्नोज सही करना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो जाए कि हम बोले ओ ओके अब तो मैं हार्ड डायरेक्शन ही दूंगा, तो मैं हाई सपोर्ट ही दूंगा या मैं दूंगा, वैसा नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर D4 को, जो कि हाई अचीवर है, हम उसको अगर S1 की तरह ट्रीट करें, डायरेक्शन देते रहे ऐसे करो ऐसे करो वैसे करो, तो उसको शायद अच्छा नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल शायद आप लोगों ने ये चीज एक्सपीरियंस करी है कि अगर आप कभी ड्राइव कर रहे हो और जो साथ में बंदा बैठा हुआ है आपके, वो आपको हर मोमेंट पे बोल रहा है, हर मिनट में बोल रहा है, अरे सामने देखो, अरे राइट टर्न करो, अरे ब्रेक लगाओ, अरे तुम देख नहीं रहे, अरे हॉर्न बजाओ। उस वक्त हमारा क्या मन करता है, अगर हम अच्छे ड्राइवर हैं तो हम कहते हैं कि भाई तू ही चला ले, मैं तो नहीं चलाना, या निकल जा मेरी गाड़ी से, बिकॉज यू गेट फ्रस्ट्रेटेड, है ना। तो एज अ ड्राइवर आप कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन एक इंसान आपको बार 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 इंस्ट्रक्शंस देता रहे, तो वो सही नहीं होता है। लेडीज ये चीज एक्सपीरियंस करते हैं किचन में। फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड एक दिन आ गए, बोले नहीं ये डालो ये डालो, मेरे को पता है भाई छोड़ दो, आई नो इट, राइट। सो ग्रेट, तो आगे चलते हैं, और हमारा रैपिड फायर राउंड आ गया। एंड कौन सा शो है? कॉफी विद, बताएं 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 किसके साथ कॉफी पीनी है? कॉफी विद करण या फिर कॉफी विद मगन? ऑलराइट, आई लाइक दैट। थैंक यू जगमीत, यू आर द फर्स्ट वन टू से दैट। थैंक यू डॉक्टर कल्पना, थैंक यू ज्योति। यस, या मंजीत ग्रो कह रहे डू नॉट लिसन मोबाइल ड्यूरिंग ड्राइविंग। हाँ जी सही बात है। शीला यस, कॉफी विद मगन। सो मेरा कप तो रेडी है, क्या आपका कप रेडी है? ओके, सो कॉफी विद मगन। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों और सज्जनों, पहला सवाल 5,000 रुपए के लिए आ रहा है आपकी स्क्रीन पर अब, और याद रखिएगा द फर्स्ट पर्सन टू आंसर इज गोना बी द विनर। ओके सत्या यस, कॉफी विद मगन। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 1। और जैसे कि मैंने कल बताया था 4 ऑप्शंस आएंगे, आप ऑप्शन भी टाइप कर सकते हैं या आप आंसर भी टाइप कर सकते हैं। ओके, सो 1 2 3 एंड गो। What aspect of Arjun's situation suggests the need for an S2 coaching style? बताइए। ऑप्शन ए, high competence in wellness practices. Option B, struggle with consistency.
ऑप्शन सी, टोटल लैक ऑफ इंटरेस्ट इन वेलनेस, या ऑप्शन डी, हिज रोल एज अ वेलनेस कोच, कि वो खुद ही एक वेलनेस कोच है। ओके, बहुत सारे राइट आंसर्स आ रहे हैं, बहुत सारे राइट आंसर्स आ रहे हैं। बी 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 बी, इनफैक्ट किसी ने बोला S2 भी बोला है ना, पूरम जी ने 2 भी बोला है। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही आंसर है। बट देखते हैं सबसे पहले करेक्ट आंसर किसने दिया है। ऑलराइट, द फर्स्ट पर्सन टू गिव द करेक्ट आंसर इज रामेश्वर एंड उज्ज्वला। बहुत अच्छे। In fact, we have a repeated winner also. Sethi Saab is also right. Sunil and Sangeeta Kapoor. So top 3 lete hain, chaliye. The first top 3 people to answer it correctly is Rameshwar and Ujjwala. Zordar taliyan. Sethi Saab. Zordar taliyan. Sunil and Sangeeta Kapoor ji. Zordar taliyan. Super, super, super. You got it. You got it. Wow. Wow. So many messages. So many messages. Okay, I'm still getting it. डॉक्टर कल्पना थोड़ा फास्टर, अभय थोड़ा फास्टर, मधु थोड़ा फास्टर, समरेंद्र थोड़ा फास्टर, मनीषा, क्राउन टीम आप थोड़ा सा फास्टर करना पड़ेगा, लक्ष्मी आपको भी, रीत आपको भी, शकील आपको भी थोड़ा फास्टर, रीना एंड भवानी ओके आपको भी फास्टर, डॉक्टर बाकुले आपको भी, श्रीनाथा आपको भी फास्टर 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 करना पड़ेगा। तो अगला सवाल 50,000 रुपए के लिए आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। कृपया करके रेडी हो जाइए, रेडी हो जाइए, रेडी हो जाइए। और अगला सवाल है ये, S2 स्टाइल का जो कोच होता है उसका फोकस किस चीज पे होता है। All right, all right, all right. I'm again getting right answers, right answers. All right, बहुत सारे right answers, बहुत सारे right answers, बहुत सारे right answers. ओके ओके, देखते हैं देखते हैं देखते हैं कौन है। ओके ओके ओके, अनस एंड हमीरा आपने सवाल जवाब तो दिया S2, लेकिन वो तो ऑप्शंस में नहीं है। सो द फर्स्ट राइट आंसर टू कंसिडर इज Sedisa B, absolutely offering support and giving direction. And let's take top 3 then. तो फिर शक्ति प्रसाद and संजीव and रिंदगी, और ओके रिंदिकी, I'm sorry अगर मैं आपका नाम ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। रिंदिकी, ओके ग्रेट, एक्सीलेंट। ऑलराइट, सो देखते हैं क्या ये सही जवाब है। Absolutely right answer. Each one of you right answer, right answer. लेकिन थोड़ा फास्टर चलना पड़ेगा। संभव, ओके, मदन लाल फास्टर चलना पड़ेगा, कार्तिक फास्टर चलना पड़ेगा, सत्या फास्टर, नीलेश फास्टर, जगमीत फास्टर। नेक्स्ट उसके लिए रेडी हो जाइए। फास्टर फास्टर फास्टर। ओके, सबके आंसर्स करेक्ट हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, आपके आंसर्स करेक्ट हैं। ओके ओके ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 5 लाख रुपए के लिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा है अब। लेट्स सी, ओके ओके, देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं। देखते हैं क्या ये आंसर करेक्ट है। D2 बोल रहे हैं रश्मि, रश्मि इज द फर्स्ट वन टू आंसर। अनुज एंड शिवानी बोल रहे हैं D3, मोहम्मद इजाज बोल रहे हैं B, दराइश बोल रहे हैं B. So let's see which is the correct answer. And the correct answer is B. It is D2. Yes, yes, it is D2. So congratulations, Rashmi. बहुत अच्छे. मोहम्मद इजाज बहुत अच्छे. Darius, very good. Good to see you here. Yes, top 3, top 3. बहुत अच्छे. जगमीत थोड़ा फास्टर करना पड़ेगा। चलिए चलिए, क्वेश्चंस खत्म होने वाले हैं। नेक्स्ट उसमें फास्टर। सुनील, you're right. संगीता, right. Nilesh, right. Sanjeev, again right. Rindiki, right. Okay, Anas and Hamira, right. Prabhakar and Rachna. हाँ देखिए, D1 में भी हम थोड़ा सा
करते हैं, लेकिन उनकी मोटिवेशन तो ऑलरेडी हाई होती है D1 की, तो उसका मोटिवेशन इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो D2 होता है उसका मोटिवेशन लो होता है, इसलिए मोटिवेशन बढ़ाने की जरूरत होती है। ऑलराइट, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है 50 लाख रुपए के लिए। ये रहा। वीकली प्लान किस लिए इंपॉर्टेंट है अर्जुन के लिए? किस लिए इंपॉर्टेंट है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या है? इट इंश्योर्स ही ओनली फोकसेस ऑन हिज डाइट। ऑप्शन बी कि उनको एक स्ट्रक्चर प्रदान करता है उनका स्ट्रेस मैनेज करने के लिए, वर्कआउट्स के लिए। ऑप्शन सी उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को लिमिट करता है। या ऑप्शन डी वो उनको एक वेलनेस एक्सपर्ट बनाता है। तो देखते हैं कि क्या सही आंसर है और किसने सही आंसर दिया है। सो लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी। Lot of people there, lot of people there, lot of people there. Let's see. I'm trying to figure out. Okay. Okay. 3 winners this time. 3 winners this time. So, सबसे पहले देखते हैं सही आंसर क्या है। Why setting a weekly plan important for Arjun? तो सही आंसर है that it provides a structure to manage stress and workouts. और सही पहले 3 सही जवाब आए हैं अरविंदर पाल सिंह, बहुत अच्छे। एंड देन समवन कॉल्ड फिटनेस एंड फ्रीडम कम्युनिटी। तो आपका नाम हमें नहीं पता, बट बहुत 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 अच्छे, एक्सीलेंट। मनोज जी, मनोज पांडे, यस, D2 के लिए, विच मीन्स इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर। लेकिन ऑप्शंस में बताना था क्या ऑप्शंस हैं, A, B, C या D। तो उसके लिए जगमीत, यू गॉट इट, बहुत अच्छे, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। सो वी आर गोइंग रियली रियली वेल। और फाइनल 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 फाइनली, यस जगमीत कहता है फाइनली, यस जगमीत, यू गॉट इट, फाइनली फाइनली। कुछ लोग तो बस उसमें हाथ रखते हैं अपने कीपैड पे, के टक से दबा दिया, है ना, फटाफट पड़ता ही। चलिए, final answer, final question for D2 before we move into the next piece. Okay, so thank you Grover साहब, winners cup to all the winners. I wish कि अगर हम in person होते तो फिर हम आपको reward कर सकते थे, right? Okay, but right now please accept our congratulations. Please accept congratulations from Manjeet Singh Grover. Okay, अगला सवाल 5 करोड़ रुपए के लिए आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। प्लीज रेडी हो जाइए। और क्वेश्चन है ये। ओ ओ वाह 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 वाह, इतना फास्ट करो मैं देख भी नहीं पा रहा हूं। वाह वाह वाह, ओके 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 ओके। सो फीडबैक फ्रॉम मीरा इज क्रूशियल फॉर अर्जुन बिकॉज अर्जुन के लिए मीरा की फीडबैक क्रूशियल क्यों है, जरूरी क्यों है? Option A, to discourage any new wellness practices. Option B, to reinforce positive behaviors and just strategies. Okay. Option C, to keep the coaching style strictly directive. Yeah. Option D, to reduce his competence in wellness. So of course, हम सबको सही आंसर पता है, हम देखते हैं B। और हमारे टॉप 3 विनर्स हैं मनोज, जोरदार तालियां मनोज के लिए, एक्सीलेंट। Darius, excellent. I love the way you're participating. Jagmeet, once again, you got it. बहुत अच्छे, finally. But you guys were super fast. देखिए इसमें ना fraction of seconds, like नैनो सेकंड से भी कम का फर्क होता है, बिकॉज आप सबका चैट टाइम जो टाइम स्टैम्प है एग्जैक्टली सेम आ रहा है, 8:13, राइट? एग्जैक्टली सेम आ रहा है, तो बहुत ही बढ़िया। एंड यू आर राइट, Jagmeet Singh, I think people are answering option B as the default answer. Bhaktu, you're right. Suresh, you're right. Srinata, Purushottam, Protul, you're right. Chaudhary Saab, you're right. Vinod and Aarti, you are absolutely right. Rajesh Jalakia, you're right. Sanjoy, आप भी ठीक हैं. Sanjay Saklecha, आप भी ठीक हैं. Patak Saab, OP Patak, you're also right. Archana, absolutely right.
Srinivas, right. Mohammad Naseem, you're right. Mriganka, you are absolutely right. What a unique name, Mriganka, you have. बहुत ही बढ़िया. Santosh, okay. Okay, Manjeet Singh says, thank God I'm the winner B. All right, okay. So that brings us to the close of the first rapid fire round of the day, and lots of congratulations to all the winners. Jagmeet says now everyone has cracked the code. बहुत बढ़िया. और आपने इतनी अच्छी बात बोली जगमीत about cracking the code, क्योंकि जो before going on to the other case studies, मैं आपको एक अभी टूल भी देने वाला हूं जिससे आप कोड को क्रैक करेंगे ही करेंगे, कोई सवाल ही नहीं है. आप जो मर्जी हो, जैसे मर्जी हो, जहां से मर्जी हो, कोड तो क्रैक होगा ही. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं. देखिए, हम सबके पास फोन है ना, वो एक कोड से खुलता है, राइट, या फिंगरप्रिंट से खुलता है. तो अगर मैं आपका फोन लूं और आप मुझे उसका कोड बता दें. थैंक यू भक्तू, थैंक यू सो मच. आप यू वेरी काइंड, वेरी काइंड. थैंक यू भक्तू. तो अगर आप मुझे अपना फोन दें और उसका कोड बता दें और मैं उस पर वो डाल दूं कोड, या तो पिन नंबर डाल दूं या पैटर्न डाल दूं, तो मैं आपका फोन खोल सकता हूं, राइट. नो ब्रेनर. आपका फोन, आप मुझे बताएं क्या कोड है, मैं वो कोड डालूं, फोन खुल जाएगा. सिंपल सी बात है. हम सबने लाइफ में कभी ना कभी वो लॉक यूज करा है जो कि कोड से खुलता है, जैसे आजकल हम फोन यूज करते हैं. और अगर वही कोड मैं, मान लीजिए, किसी और को बताऊं, किसी छोटे बच्चे को बता दूं, और वो छोटा बच्चा वही कोड डाले आपके फोन में, तो वो कोड, फोन खुल जाएगा. सो सविता सेज खुल जा सिम कोड. यस, है ना. थैंक यू आरपी सिंह, थैंक यू सो मच. थैंक यू क्राउन टीम, थैंक यू. इट मीन्स अ लॉट टू मी. तो छोटा बच्चा अगर कोड डालेगा तो फोन में, तब फोन खुल जाएगा. और अगर वही छोटा बच्चा वो कोड, लेट्स से दरायस को दे दे, तो दरायस अगर वो कोड डालेगा तो खुलेगा. ग्रोवर साहब को दे दे, खुलेगा. आईपी सिंह साहब को दे दे, खुलेगा. भक्तू को दे दे, खुलेगा. सविता को दे दे, खुलेगा. तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोड कौन डाल रहा है. जब तक आप सही कोड डाल रहे हो तो ताले को खुलना ही है, खुलना ही है. तो ये सिचुएशन लीडरशिप वही एक कोड है, वही एक फ्रेमवर्क है. और अब कि हमारा कोड कभी गलत ना हो, कोई अजम्पशन ना हो, उसके लिए मैं आपको एक टूल भी देने वाला हूं. और जगमीत, आपने एकदम सही टाइम पे ये बात करी, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया. और इस टूल को हम बोलते हैं क्लाइंट असेसमेंट टूल. क्लाइंट असेसमेंट टूल मतलब ये कि आप अपने किसी प्रोस्पेक्ट से मिले या किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, और आप सोच रहे हैं यार इसका बिहेवियर कैसा है, ऐसा है, वैसा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा. क्योंकि शुरू में थोड़ा सा टाइम लग सकता है पहचानने में, वैसे तो बहुत आसान है, बट स्टिल. तो उसके लिए हम आपको एक टूल दे रहे हैं, और ये टूल जो है, आप एमवे की जो टीम है, ये आपको भिजवा देंगी एज अ डॉक्यूमेंट, आपको मिल जाएगा. बट अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि ये क्या टूल है, इसको कैसे यूज करते हैं, बिफोर वी मूव ऑन टू अदर केस स्टडीज. ओके, ऑलराइट. तो इसको हम बोलते हैं क्लाइंट असेसमेंट टूल. तो इसके क्या इंस्ट्रक्शंस हैं? सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शंस देखें, तो हर स्टेटमेंट को, उस पर कुछ स्टेटमेंट्स हैं, और मैंने इसको कोशिश करी है कि इसको इंग्लिश में रखूं, ताकि इस ग्रुप के लिए हम सबको थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन में सही रहे. और इसका मैं इंग्लिश वर्जन भी दूंगा, विच यू कैन गेट लेटर. तो जिसको जो भी कंफर्टेबल है आप वो यूज कर सकते हो. तो अभी स्क्रीन पे बोल रहे हैं कि हर स्टेटमेंट को पढ़ो और सोचो कि ये आपके क्लाइंट को कितना डिस्क्राइब करता है ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5, जहां 1 का मतलब है स्ट्रांगली डिसएग्री और 5 का मतलब है आई स्ट्रांगली अग्री. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूं. पहला सवाल जो कैटेगरी है वो है मोटिवेशन टू चेंज, कि मेरे क्लाइंट का कितना मोटिवेशन है चेंज होने के लिए. ओके. तो वो अगर असेस करना है, कई बार उनकी बातों से समझ में नहीं आता, कुछ लोगों का मोटिवेशन दिखाने का तरीका इतना एनर्जी वाला नहीं होता, तो हो सकता है हम कंफ्यूज हो सकते हैं, है ना. सो लेट्स सी. तो पहला सवाल है कि मेरा क्लाइंट अपनी लाइफस्टाइल और हैबिट्स में चेंजेस लाने का स्ट्रॉन्ग डिजायर दिखाता है. तो क्या आपको दिखता है? अगर आप स्ट्रांगली अग्री करते हैं तो स्ट्रांगली अग्री, अगर अग्री करते हैं, हाँ स्ट्रांगली नहीं, हाँ अग्री करता हूं, तो ठीक है. या फिर न्यूट्रल, कि ना मैं अग्री कर रहा हूं इस बात से, ना मैं डिसअग्री कर रहा हूं, ना मान रहा हूं, ना
हाँ बोल रहा हूँ ना बोल रहा हूँ, न्यूट्रल है, या मैं ना बोल रहा हूँ डिसएग्री करता हूँ, नहीं नहीं दिखाता है, या स्ट्रांगली डिसएग्री, भाई ये तो बिल्कुल ही नहीं दिखाता है। तो ऐसे आपको जो भी ऑप्शंस हैं आपने वो लिखना है उधर कि मैं क्या अग्री करता हूँ, क्या डिसएग्री करता हूँ, और फिर क्वेश्चंस को आंसर करते जाना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा क्लाइंट अपने वेलनेस गोल्स को अचीव करने के लिए कमिटेड है, मुझे क्या लगता है, मैं अग्री हूँ, स्ट्रांगली अग्री हूँ, न्यूट्रल हूँ, डिसएग्री हूँ, स्ट्रांगली डिसएग्री हूँ। और फिर मेरा क्लाइंट अपने जर्नी को सपोर्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज एक्टिवली ढूंढता नहीं है, तो क्या आपसे बार बार पूछता है कि अरे आप मुझे कुछ बता सकते हैं, मैंने ना ये व्हाट्सएप पे मेरे को ये मैसेज आया कि अगर सुबह हम जौ का पानी पी लें और ये कर ले तो इससे ठीक रहेगा, क्या ये बात ठीक है? तो इसका मतलब वो ढूंढ रहा है, कुछ ढूंढ रहा है, लेकिन शायद सही सोर्सेज पे नहीं जा रहा है, राइट? ऑलराइट, तो फिर आप उसमें आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल क्लैरिटी है कि नहीं? तो मेरे क्लाइंट के पास वेट मैनेजमेंट और ओवरऑल वेलनेस से रिलेटेड क्लियर स्पेसिफिक गोल्स हैं। मतलब हो सकता है एक क्लाइंट, जैसे मेरे जैसा एक क्लाइंट है, मान लीजिए मैं आपके पास आऊं और मैं बोलूं कि दरायस, थैंक यू दरायस, सुपर्ब टूल है, यस एब्सोल्युटली, कि दरायस मैं ना मतलब 6 पैक्स करना चाहता हूं, मैं ना 65 kgs या 75 kgs जाना चाहता हूँ 90 किलो से। तो मतलब एक गोल क्लैरिटी है, या हाँ कर लेंगे जितना कम हो जाए, तो क्लैरिटी नहीं है। तो आपके जो क्लाइंट है, जब आप अपने क्लाइंट से इंटरेक्ट करें, या अभी भी आपके जो कुछ क्लाइंट्स हैं जिनके साथ आप काम कर रहे होंगे ऑलरेडी, आप उनका नाम लिखें इस फॉर्म के ऊपर, और फिर ये क्वेश्चंस को आंसर करना शुरू करिए। ओके, सो फिर आप इसमें आंसर देंगे स्ट्रांगली अग्री, अग्री, न्यूट्रल, डिसअग्री, स्ट्रांगली डिसअग्री, और ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते जाएंगे। अभी मैं क्वेश्चंस आपको क्विकली दिखा देता हूँ। मेरा क्लाइंट अपने गोल्स की इंपॉर्टेंस को समझता है और उन्हें अचीव करने के लिए कमिटेड है। मेरा क्लाइंट अचीवेबल माइलस्टोन सेट करने के लिए कोलैबोरेटिवली काम करने के लिए विलिंग है। उसको सेल्फ अवेयरनेस कितनी है? मेरा क्लाइंट अपने वेट मैनेजमेंट चैलेंजेस में कंट्रीब्यूट करने वाले फैक्टर्स को पहचान लेता है। मेरा क्लाइंट अपने चैलेंजेस को एड्रेस करने में सपोर्ट और गाइडेंस की जरूरत को एक्नॉलेज करता है। मेरा क्लाइंट अपने बिलीफ, अपने बिहेवियर और अपने इमोशंस जो वेट मैनेजमेंट से रिलेटेड है उनको एक्सप्लोर करने के लिए ओपन है। जी, मैं आपको लास्ट स्लाइड फिर से दिखा सकता हूं, लेकिन ये आपको मिल भी जाएगा रोमा, ये टूल आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको फिर भी दिखा देता हूं। ये देखिए। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूं। ये हमने क्वेश्चंस सारे कर लिए थे, तो इन सब का आपने जवाब देना है। यू वेलकम रोमा, यू वेलकम। इनका जवाब देना है वही स्ट्रांगली डिसएग्री और डिसएग्री, न्यूट्रल, अग्री या स्ट्रांगली अग्री। तो ऐसे करते 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 जब आप ये सारे सवालों का जवाब दे देंगे, तो अंत में आपको क्या करना है, अपनी स्कोरिंग देखनी है। स्कोरिंग मतलब कि हर से एक स्टेटमेंट्स के लिए स्कोर्स को ऐड करना है, ताकि ओवरऑल रेडीनेस और कमिटमेंट लेवल का पता लग सके। मतलब ये कि जहां जहां पे आपने जवाब अपना दिया है स्ट्रांगली अग्री, उसके लिए आपने 5 पॉइंट देने हैं उस क्वेश्चन के आंसर को। अगर अग्री दिया है तो 4 पॉइंट्स देने हैं, न्यूट्रल दिया है तो 3 पॉइंट्स देने हैं, डिसएग्री करा है तो 2 पॉइंट्स देने हैं, और स्ट्रांगली डिसएग्री करने के लिए 1 पॉइंट। अब जब आप इसको टोटल पूरा कर लेंगे तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? इसकी इंटरप्रिटेशन है, भवानी प्रीवियस स्लाइड कौन सा? ये इस स्लाइड की बात करो, ये क्वेश्चंस हैं, ये आप सबको मिल जाएंगे, ये भी क्वेश्चंस हैं, आप सबको मिल जाएंगे। ये मैंने इंस्ट्रक्शंस बताई थी, अभी मैं स्कोरिंग बता रहा हूं, ठीक है? तो स्कोरिंग ऐसे, आप स्कोरिंग का इंटरप्रिटेशन क्या है? स्कोरिंग का इंटरप्रिटेशन है ये, अगर 20 से 25 के बीच में उससे अबव के पॉइंट्स हैं, तो इसका मतलब ये आपके D4 हैं, जिनकी कॉम्पिटेंस भी हाई है और कमिटमेंट भी हाई है। अब D4 है तो मुझे कौन सी दवाई देनी है? S4, सिंपल। 15 टू 19 के बीच में उनके पॉइंट्स आए तो मॉडरेट कॉम्पिटेंस है और वेरिएबल कमिटमेंट है, मतलब S3। D3 हो गए तो S3 करना है। 10 से 14 के बीच में पॉइंट्स आए, स्कोरिंग आई, तो कुछ कॉम्पिटेंस है लेकिन कमिटमेंट लो लग रही है, तो फिर वो D2 हो गए। और फाइनली 5 टू 9 के बीच में पॉइंट्स आए तो कॉम्पिटेंस भी लो है और कमिटमेंट भी लो है। और हाँ, शक्ति, आई विल नॉट रिकमेंड कि आप ये क्वेश्चंस क्लाइंट को दे दीजिए। नहीं नहीं, क्लाइंट को मत दीजिए, उनको फिल नहीं करना है। आप उनसे पूछ सकते हैं बैठ के
कि आपको इसके बारे में क्या लगता है, इसके बारे में क्या, लेकिन फिल खुद कीजिए। ये आपके क्लाइंट असेसमेंट टूल है, ये आपने उनको देना नहीं है, ये आपने खुद डायग्नोज करना है, ये आपको सपोर्ट करने के लिए है ताकि गड़बड़ ना हो, ठीक है? तो देना नहीं है। थैंक यू उपासना, थैंक यू, इट इज एन ऑसम टूल एंड यू वुड लव दिस। तो जैसे ही आपके पास ये जवाब आएगा, बूम, yes, Chandan, you are absolutely right. Darius, you're right. You are the coach, so you have to analyze. Darius, absolutely. Chandan says, what about low competence and low commitment? अगर competence भी low है और commitment भी low है, तो सोचिए कि क्या वो सही client है आपके लिए? ना तो करना चाहता है और ना ही उसको करना आता है। तो क्या वो सही client है? You understand? नहीं है सुरेश, absolutely, 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 absolutely. Yes, yes, Nilesh, you're absolutely right. On the interpretation, we are going to decide. Yeah, Babani, you are right. वो सही क्लाइंट नहीं है, उनको छोड़ दे. Don't waste your time with them, है ना? मैं मान लीजिए आप एक शॉपकीपर हैं, मैं आपके पास आऊं, ना तो मुझे पता है मुझे क्या सामान लेना है, ना ही मैं सामान लेना चाहता हूं, तो फिर अब क्या करोगे? Okay, thank you, Suchi. Yes, yes, absolutely. Bhupender, you're right. All right, absolutely. Next, absolutely. Okay, great. दराइस, बहुत अच्छे. उनको क्या कर सकते हैं? पीछा छुड़ाना इन द सेंस, हो सकता है किसी सेमिनार में बुला लें, अगर वो आ जाएं तो हो सकता है उनका थोड़ा क्यूरोसिटी बढ़े, है ना? या कभी कभार उनको आप मैसेज कर सकते हैं, यू कैन बी इन टच. लेकिन मेरी आपसे रिकमेंडेशन ये रहेगी कि बहुत ज्यादा अपना समय उधर ना लगाएं, बल्कि अपना फोकस लगाएं उन क्लाइंट्स पे जो क्लियरली इन कैटेगरीज में है, ताकि उनके लिए भी जर्नी अच्छी हो, आपके लिए भी जर्नी अच्छी हो. दराइस कह रहे हैं प्रोडक्ट रेकमेंड करके छोड़ दीजिए. दैट्स अ गुड ऑप्शन, बहुत अच्छा ऑप्शन है दराइस. आई लीव दैट टू यू, क्योंकि यू गाइज आर एक्सपर्ट्स व्हेन इट कम्स टू न्यूट्रलाइट. आप एक्सपर्ट हैं. यस, समरेंद्र से कह रहे हैं कि फिल्टर दोस पीपल. ओके गाइस, अपने पास समय कम है और काम बहुत ज्यादा है, तो आगे बढ़ते हैं. ऑलराइट, so far we've looked at 4 development levels, we've looked at 4 leadership styles or coaching styles, and we've also looked at the assessment tool. And जैसा कि मैंने आपको बोला, आपको ये assessment tool मिल जाएगा. अब वापस मॉडल की तरफ चलते हैं और S3 को एक्सप्लोर करते हैं. S3 को एक्सप्लोर करते हैं. S3 कौन है? S3 सपोर्टिंग स्टाइल है, जिसमें मतलब सपोर्ट तो हाई है मगर डायरेक्शन लो है. अगर आप स्क्रीन देखें, थैंक यू कल्पना, थैंक यू सो मच कल्पना, डॉक्टर कल्पना, अप्रिशिएट इट. तो इसमें हाई और लो है सपोर्टिव. अब देखिए सपोर्टिव कहां पे है? हाई की तरफ दिखा रहे हैं, और डायरेक्टिव बिहेवियर में ये लो की तरफ है, इस तरफ है ना, इस तरफ है. तो S3 स्टाइल हो गया, सपोर्टिंग स्टाइल हो गया, मतलब सपोर्ट ज्यादा करनी है और डायरेक्शन कम देनी है. मतलब आपने ये ध्यान रखना है, जैसे मेरी वाइफ, मैंने आपको बताया कि ड्राइव करते हैं. अब जब वो ड्राइव कर रहे हैं, अगर मैं हर टाइम उनको बोलता नहीं ऐसे मत करो, ऐसे करो, ऐसे मत करो, ऐसे, तो वो ज्यादा घबरा जाएंगी जब ट्रक को ओवरटेक करेंगी. या मैं सपोर्ट कर सकता हूँ, सपोर्ट कर सकता हूँ कि हाँ तुम कर सकती हो, तुम अच्छा कर रही हो, अरे देखो कितनी सही, अच्छे से आसानी से कवर कर लिया. तो हाई सपोर्ट, लेस डायरेक्शन. नो डायरेक्शन नहीं, लेस बोल सकता हूँ. ये जरूर बोल सकता हूँ कि जब ओवरटेक कर रहे हो ना, तो स्पीड थोड़ी फिर बढ़ाओ, मतलब डबल माइंड में मत रहो. तो मैंने थोड़ी सी डायरेक्शन भी दे दी, राइट? ओके, लेट्स दरायस कह रहे हैं सर वाइफ मायके गई है. किसकी? आपकी वाइफ गई है कि मेरी वाइफ के बारे में बोल रहे हैं? ओके, ओके, सो लेट्स लुक एट दिस. सो फिर से स्टेटमेंट्स लेकर आते हैं और आप लोगों ने मुझे बताना है ये स्टेटमेंट क्या है, सपोर्टिव है या डायरेक्टिव है. थैंक यू संजीव, थैंक यू सो मच. डायरेक्टिव है या सपोर्टिव है? ओके, सो पहली स्टेटमेंट क्विकली बताइए. जो हाई सपोर्टिव लीडर होता है, लो डायरेक्टिव कोच जो होता है, वो एनकरेज करता है इंडिविजुअल को कि वो लीड ले गोल सेटिंग में, एक्शन प्लानिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में. एब्सोल्युटली इट इज सपोर्टिव. यस अनस, you are right, supportive. Sethi Saab, right. Jagmeet, super. It is supportive, supportive. Madan Lal, supportive. Hemant, supportive. Babani, supportive. Excellent. अमृता, डायरेक्टिव नहीं है. देखिए वो
एज अ कोच आप अपने क्लाइंट को एनकरेज कर रहे हैं कि आप बताइए कि आप क्या क्या गोल करना चाहेंगे, आपका क्या गोल है वेट मैनेजमेंट से, आप थोड़ा सा प्लानिंग बताएं। तो आप उनको डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप उनसे पूछ रहे हैं, राइट? फिर सवाल पूछ रहे हैं, आस्किंग क्वेश्चंस, लिसन टू कंसर्न, सर्विंग एज अ साउंड बोर्ड। तो ये क्या हुए, ये कौन सी स्टेटमेंट रही? यू वेलकम अमृता, यू वेलकम। सपोर्टिव, सपोर्टिव, वेरी गुड। संजीव नहीं, डायरेक्टिव नहीं है, डायरेक्टिव नहीं है, सपोर्टिव है। वेरी गुड, वेरी गुड, यस। ओके, ओके, नेक्स्ट 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 चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि समय हमारे साथ नहीं है अभी। फैसिलिटेट सेल्फ रिलायंट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इवैल्यूएशन। तो फैसिलिटेट कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि बीच में कुछ अड़चन आ गई कि अरे मेरा ना तीन तीन दिन से वर्कआउट मिस हो गया, डाइट भी मिस हो गई क्योंकि मेरी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी, ये था। तो कहते हैं, अच्छा तो फिर क्या कर सकते हो, मतलब नेक्स्ट टाइम अगर ये मिस ना हो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, है ना? सेल्फ रिलायंट प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्योंकि उनमें उनमें क्षमता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। सेल्फ रिलायंट क्लाइंट में है, तो आप फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो डायरेक्ट एंड सपोर्टिव दोनों है, डायरेक्टिव नहीं है। डायरेक्टिव एंड सपोर्टिव दोनों है, सपोर्टिव ज्यादा है, डायरेक्टिव कम है। एज अ कोच आप पूछते हैं हाउ कैन आई हेल्प, मैं कैसे मदद कर सकता हूं? सपोर्टिव, 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 एब्सोल्युटली नॉट एसएनडी, दिस इज क्लियरली सपोर्टिव। फिर शेयर्स एक्सपर्टीज एंड कोलैबोरेट्स व्हेन आस्क्ड, अपनी एक्सपर्टीज शेयर करते हैं और कोलैबोरेट करते हैं जब पूछते हैं, तो फिर सपोर्टिव है और डायरेक्टिव भी हैं, क्योंकि अपनी एक्सपर्टीज शेयर कर रहे हैं, लेकिन कोलैबोरेट भी कर रहे हैं। और कब कर रहे हैं? जब उनसे बोला जा रहा है कि अच्छा ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ। तो बोथ provide support, reassurance, encouragement, and praise to acknowledge competence and build commitment. Clearly supportive है, clearly supportive है। Reflect on past successes and skills to build confidence. इसको भी डायरेक्टिव थोड़ा सा बोल सकते हैं, मगर largely supportive है। And suggest ways to make the goal more interesting or challenging if motivation is low. Again, directive and supportive both. तो if you see, largely supportive पे ज्यादा है behavior और directive पे कम है। और एक S3 कोच को यही करना है, सपोर्टिव कोच को यही करना है, सपोर्ट ज्यादा करनी है और डायरेक्शन कम देनी है। ऑलराइट, सो लेट्स मीट अदिति और देखते हैं। एब्सोल्युटली नसीम, दोनों करने हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बोथ। लेट्स मीट अदिति, देखते हैं अदिति कौन है, अदिति क्या करती हैं। तो अदिति एक 35 ईयर ओल्ड लाइफस्टाइल ब्लॉगर है, डीपली पैशनेट अबाउट वेलनेस, वेलनेस को लेके बहुत पैशनेट है और कई सालों का एक्सपीरियंस है इन एक्सप्लोरिंग वेरियस वेलनेस प्रैक्टिसेस, है ना? तो कभी ओके, शुचि से प्रीवियस स्लाइड, शुचि से प्रीवियस स्लाइड, आप देखिए प्रीवियस स्लाइड। You're welcome, Shuchi, you're welcome. So let's move forward, okay? तो अदिति के बारे में बात कर रहे थे, उनका काफी एक्सपीरियंस है और उनको अच्छी नॉलेज भी है न्यूट्रिशन की, एक्सरसाइज रूटीन्स की, माइंडफुलनेस टेक्निक्स की, है ना? और हम यही सब तो सिखा रहे हैं ना। और अदिति एक ऐसी इंसान है जो है जिनको ये सब कुछ पता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अरे वो हमारी क्लाइंट नहीं हो सकती, हो सकती हैं। वो S3 D3 स्टाइल है, उनके लिए क्या हम कोचिंग स्टाइल यूज करेंगे? हमने बोला सपोर्टिव। तो देखते हैं। सो अदिति इज ऑलवेज ऑन अ लुकआउट फॉर न्यू वेलनेस ट्रेंड, कि नया वेलनेस ट्रेंड क्या आ रहा है। और अपने क्योंकि लाइफस्टाइल ब्लॉगर हैं तो उनको भी कंटेंट चाहिए अपने जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं इंस्टा पे या फॉलोअर्स हैं, वो सब कुछ हैं, उनको कंटेंट देने के लिए। और उनका जो एंथुजियाज्म है वो तो हाई है और अंडरस्टैंडिंग भी हाई है, लेकिन कई बार अदिति को ये चैलेंजिंग लगता है कि एक कंसिस्टेंट रूटीन रखें, और वो ज्यादातर साइड ट्रैक हो जाती हैं विद हर बिजी शेड्यूल एंड अदर प्रायोरिटीज। अब देखिए अर्जुन और उनमें फर्क क्या है, इनका मोटिवेशन ऊपर नीचे होता रहता है, ऐसा नहीं है कि नीचे ही है। अर्जुन का नीचे ही था, तभी अर्जुन D2 था, लेकिन इनका ऊपर नीचे होता रहता है, तो इसलिए ये शायद D3 है। आप बताएंगे ये क्या है? Aditi sets high standards and ambitious goals for her wellness journey. Yes, her commitment levels fluctuate. तो clearly ये कौन है? D3 है। You guys got it, excellent.
डॉक्टर अजीत, S4 स्टाइल नहीं, S3 स्टाइल होगा इनके लिए। उपासना, यू आर एब्सोल्युटली राइट, D3 है। राजेश, यू आर राइट, D3। संजीव एंड रिंदगी, S4 नहीं, S3 जो सपोर्टिव स्टाइल होता है, हाई ऑन सपोर्ट, लो ऑन डायरेक्शन। वो देखिए, जैसे ही आपने बोल दिया D3 तो नो ब्रेनर है, फिर S3 करना है, 3-3 मैच कर लीजिए, है ना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या हुआ। D3, यस, हेल्दी लिविंग। पाठक साहब, यू आर राइट। मिस्टर दुबे, यू आर राइट। शीला जी, आप भी ठीक हैं। मदन लाल, एब्सोल्युटली। संजीव, सुनीता, रश्मि, सविता, शकील, एब्सोल्युटली। गीरा शाह, प्रभाकर, एकदम बढ़िया। रीना, बहुत बढ़िया। रीना ने तो नई टर्म निकाल दी, SD3। D3 एंड S3, सही है। शक्ति, बहुत अच्छे। एब्सोल्युटली, ईच वन ऑफ यू, बहुत सारे मैसेजेस हैं और आप सब राइट हैं, करेक्ट है, एक्सेप्ट फॉर जैसा कि मैंने बताया कि S4 नहीं, S3 स्टाइल लगेगा क्योंकि ये D3 है। ओके, तो चलिए केस स्टडी देखते हैं इनके कोच कौन है। तो अदिति जो है विक्रम से मिलती हैं। विक्रम एक वेलनेस कोच है और वो विक्रम से बात करती हैं। हाय विक्रम, मैं थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही हूँ एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में, मेरी जो वेलनेस रूटीन है उसमें। मैं शुरुआत तो बहुत स्ट्रांग करती हूँ लेकिन फिर मोटिवेशन कई बारी मेरा कम हो जाता है। कोच कहता है कोई बात नहीं अदिति, मैं सुनता हूँ आपकी बात, लेकिन पहले मैं आपको एक्नॉलेज करना चाहता हूँ कि आपकी जो डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेलनेस जो है बहुत ही कमेंडेबल है। हम साथ मिलके ढूंढ सकते हैं कि कैसे हम इस अप्रोच को, आपकी अप्रोच को फाइन ट्यून कैसे कर सकते हैं। थैंक यू हेल्दी लिविंग सर, यू हैव गिवन अ परफेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन थ्रू योर सेशन। थैंक यू। तो कोच कहते हैं कि अदिति आई हियर यू, मैं सुन रहा हूं तुम्हारी बात, है ना। और उन्होंने शुरुआत करी उनको कॉम्प्लीमेंट से, अप्रिसिएशन से, है ना। देखिए, जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं जिनको कॉम्पिटेंस लेवल अच्छा है, नॉलेज अच्छी है, चाहे वो D3 है या D4 है, हमें उस चीज को एक्नॉलेज करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि एज अ पर्सन, एज अ कोच, हम ना उसको थोड़ा रेजिस्ट करते हैं कि यार तुमको लगता है तुम्हें सब कुछ पता है। इट इज ओके, पता हो सकता है। आज के टाइम में इंफॉर्मेशन मोस्टली सबके पास है, राइट। सो प्लीज उस चीज का ख्याल रखिए। तो विक्रम ने वही करा, विक्रम ने पहले कॉम्प्लीमेंट करा और बोला कि हम एक साथ मिलकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इस अप्रोच को फाइन ट्यून कर सकते हैं। और फिर गोल सेटिंग करनी शुरू करी कि अदिति चलिए एक काम करते हैं, आपका एक स्पेसिफिक अचीवेबल गोल करते हैं जो आपके लिए सही है, आपके हिसाब से जो आपको रेजोनेट करता है। तो आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है वेलनेस को लेके, क्या लगता है ऐसी चीज से शुरुआत करें, विल दैट बी गुड। तो अदिति कहती हैं अरे बहुत बढ़िया विक्रम, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ टू डिफाइन सम मीनिंगफुल गोल्स एंड रियली कमिट टू देम। अब देखिए अदिति का क्या था, पहले बोला नहीं मैं तो मोटिवेशन लो, अब नहीं मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तो कभी कम है कभी ज्यादा है, राइट। तो वो कहते हैं कि ठीक है, लेट्स सी, देन वी मूव फॉरवर्ड। कोच कहते हैं विक्रम कि जैसे कि आप नई प्रैक्टिसेस को एक्सप्लोर करते हैं, ये चीज हमेशा याद रखनी है कि अच्छा ये नहीं, ये चीज हमेशा याद नहीं रखनी है, ऐसा नहीं बोला कि ये ध्यान रखिए कि मैं यहाँ पे आपको सपोर्ट करने के लिए हूँ। चलिए लेट्स रिफ्लेक्ट व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू एंड अडेप्ट एज नीडेड अलोंग द वे। आपके लिए क्या चीज सही काम करती है और हम इसको अडेप्ट कर लेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपकी जरूरत के हिसाब से। तो अदिति ने बोला लिसन, मेरे को बहुत खुशी है कि आपकी गाइडेंस मिल रही है, आपकी सपोर्ट मिल रही है, बहुत बढ़िया। विक्रम कहते हैं कुछ टाइम के बाद उनको एम्पावरमेंट और अकाउंटेबिलिटी एस्टैब्लिश करने के लिए कि अदिति आप अकेली नहीं हैं एंड मेरे को आपके अंदर फुल कॉन्फिडेंस है कि आप अपनी वेलनेस जर्नी को बहुत अच्छे से लीड करेंगी। एक सिस्टम को सेटअप करते हैं ताकि आप अकाउंटेबल रहो थोड़े, है ना, और आपको एम्पावर भी हो टू मेक योर ओन डिसीजन, है ना। प्रीवियस स्लाइड, ओके भास्कर, प्रीवियस स्लाइड, महाश्वेता प्रीवियस स्लाइड, ये लीजिए प्रीवियस स्लाइड। ओके, यू वेलकम, आई एम गोना मूव फॉरवर्ड नाउ। तो एक सिस्टम सेटअप करते हैं ताकि आप एम्पावर्ड भी रहें, अपने डिसीजन भी ले सकें, लेकिन साथ में अकाउंटेबल भी रहें। अदिति कहती हैं थैंक यू विक्रम, मैं आई एम रेडी टू टेक चार्ज
and I'm committing to my wellness goals like never before. तो उनकी एक्साइटमेंट और कमिटमेंट बढ़ गई. So that's the kind of conversation, है ना. तो largely supportive है. मैं सुन रहा हूँ, आप बताइए, आप बहुत अच्छी हैं, टाडा डाडा डाडा. High support and low on direction कि चलिए एक सिस्टम सेटअप करते हैं, है ना. Okay, so let's see how much have you understood about both of them. तो फिर से rapid fire round और अब इसको थोड़ा सा जल्दी करेंगे. Okay, coffee with Magan and first question on your screens for 5,000 rupees. और आपका सवाल है ये. Okay, Anas and Hamira, B, very good, B. कुमार संभव नहीं, ए नहीं, ए नहीं, ए नहीं, फ्लक्चुएटिंग है, हाई नहीं है, फ्लक्चुएटिंग है. दरायस सी 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 या एब्सोल्युटली. सो अनस बी भी नहीं है. दरायस यू आर राइट. Aditi's fluctuating commitment and high competence align with which development level? D3. And Darius, you are the winner of this question. बहुत अच्छे. Sunil and Sangeeta Kapoor, D3. Rashmi, see, yes. So Darius, Sunil and Rashmi. Super. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. सत्या बी नहीं, सी. बी नहीं, D3. भूपेश बी नहीं, अंशला बी नहीं, डॉक्टर संजीव एंड सुनीता बी नहीं, शकील यू आर राइट, इट इज सी, D3. फ्लक्चुएटिंग कमिटमेंट है, कॉम्पिटेंस हाई है. देखिए, याद रखिएगा हमेशा इस बात को. ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. द पार्टिसिपेटिव कोचिंग स्टाइल विच इज S3 इन्वॉल्व्स क्या इन्वॉल्व करता है? Jagjit says everyone is already. And the right answer comes from Pratap and Deepa. Very good, excellent. Sethi Saab once again, Madan Lal. C nahi, B is the right answer. Rashmi, you are right, absolutely right. Our next question is on your screen now once again. Let's see. Okay. Why is empowerment important for someone like Aditi? क्या ऑप्शन है वो डिस्करेज होती हैं, ऑप्शन बी उनकी नॉलेज को रिड्यूस करने के लिए, ऑप्शन सी इट अलाउज हर टू टेक ओनरशिप ऑफ वेलनेस डिसीजन, या ऑप्शन डी. ओके, तो देखते हैं किसका राइट आंसर है. ऑलराइट, सेरी साहब वंस अगेन, गुड जॉब. संजीव एंड रिंदगी बहुत अच्छे, मोहम्मद एजाज बहुत अच्छे, ब्यूटीफुल. It is C. Excellent. Good job. Okay. Now stop, everybody. I'm getting to the next question. So hold your horses. Okay. Next questions on your screen, and I'm going to move a little faster. Okay. Question 4. Okay. Vikram acting as a sounding board for Aditi's ideas encourages dependency on the coach. A. Option B, innovation and self-reflection in a wellness path. B, rejection of new wellness modalities. C, a strictly directive approach. D. And the right answer that we have is all right. This time we've got Sambhav. You're absolutely right. Rahul Bharti, right. Sambhav, right. And the next person is Pratap and Deepa. You are also right. Superb. बहुत अच्छा करा आपने, बहुत ही बढ़िया. You guys are rock stars. Excellent. Rock stars. रघुराम डी नहीं, रघुराम जी देखिए, अगर विक्रम साउंडिंग बोर्ड की तरह काम कर रहा है तो उससे अदिति को क्या एनकरेजमेंट मिल रही है, किस चीज का बढ़ावा मिल रहा है? डायरेक्टिव अप्रोच का बढ़ावा नहीं मिल रहा, बढ़ावा मिल रहा है कि वो इनोवेट कर पाए, सेल्फ रिफ्लेक्शन कर पाए अपने वेलनेस पाथ में. ओके, सो इट इज बी. कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन टू माय सुपर विनर्स. यू गाइस आर रॉक स्टार्स. बहुत ही अच्छे.
All right, next question. Madhumita, you're absolutely right. Next question. We are moving to the next question, please. Let's see. Next question. Next question on the screen. You're welcome, Raghuram. You're welcome. Question 5. Aditi's goal setting process should focus on A. Goals unrelated to our interests. B. Only short-term objectives. C. Specific meaningful goals. D. Avoiding any wellness goals. And my first 3 winners. Wow, repeated winners. Sethi Saab, please accept the golden cup from my side. बहुत अच्छे. Super. Jagmeet, you got it. You're super fast. Super. Pratap, excellent. बहुत अच्छे. Well done. So our top 3 winners are Sethi Saab, Jagmeet, and Pratap. And that brings us to the close of this questionnaire. और अब हमको चलना है अपने final style की तरफ. वो style कौन सा होगा? S4 मतलब क्या? देखिए अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट वाला पीस है जो हमें समझने की जरूरत है. क्या पीस है इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अभी तक तो हम उन सबको कोच कर रहे थे जो हमारे क्लाइंट्स हैं, लेकिन हमको अपना बिजनेस भी बढ़ाना है. यस ग्रोवर साहब, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द चैंपियंस, बहुत अच्छे. हमको अपना बिजनेस भी बढ़ाना है, विच मीन्स हमने और वेलनेस कोचेस को भी तो देखना है, पोटेंशियली जो हमारे वेलनेस कोचेस बन सकते हैं, जो आपकी टीम से जुड़ सकते हैं, उनके साथ कैसे डील करेंगे. क्योंकि हमारे जो क्लाइंट्स हैं जिनको हम दिस न्यूट्रीलाइट की जर्नी पे लेके चल रहे हैं 100 डेज की, हो सकता है उसमें से कुछ क्लाइंट्स ऐसे हों जिनका कॉम्पिटेंस भी हाई है और कमिटमेंट भी हाई है, और हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो अभी हमसे जुड़े नहीं हैं, लेकिन जब आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, किसी को जानते हैं, आपको लगता है यार ये बंदा बहुत सही है यार, इसमें पोटेंशियल है वेलनेस कोच बनने का, तो ये वो है उनके लिए. सपोर्ट भी लो है और डायरेक्शन भी लो है. अब लो का मतलब नो नहीं, लेकिन सपोर्ट लो इन द सेंस उनको हमारे ज्ञान की जरूरत नहीं है ना. तो लाइक वेरी फ्रेंडली उनको आगे बढ़ाना है, सिर्फ एनकरेज करके उनको अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करनी है. तो लेट्स सी आर यू टैकलिंग अस इन S3? Am I tackling you in S3? आई डोंट नो, मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाया हूं राजेश, कि क्या मैं अभी जो मेरा बिहेवियर है आप लोगों के साथ, क्या मैं S3 की तरह बिहेव कर रहा हूं? शायद सोच सकते हैं थोड़ा, लेकिन ये थोड़ा सिचुएशन डिफरेंट है, बिकॉज यहाँ पे मैं ट्रेन कर रहा हूँ, आपको नई इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ जो कि शायद आपके पास नहीं है. तो हो सकता है कि सिचुएशन लीडरशिप मॉडल के हिसाब से उसकी नॉलेज के उसमें आपकी शायद नॉलेज उतनी ज्यादा अभी नहीं है, लेकिन कमिटमेंट बहुत हाई है. लेकिन आप अपने बिजनेस में आप सब D4 हैं, है ना. आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, बट गुड क्वेश्चन, बिकॉज दिस शोज कि आप सोच रहे हैं, डिफरेंट एरियाज सोच रहे हैं. Okay, good. So let's quickly meet Rahul. Okay, we will meet Rahul. कौन है राहुल, देखते हैं. A 40-year-old योगा इंस्ट्रक्टर, ऑलरेडी योगा इंस्ट्रक्टर हैं ये. इनको वेलनेस के बारे में क्या नहीं पता होगा, बताइए. डेडिकेटेड ओवर ए डेकेड टू मास्टरिंग वेरियस वेलनेस प्रैक्टिसेस, 10 साल से ऊपर लगा दिए हैं मास्टर करने में कई सारी वेलनेस प्रैक्टिसेस. योगा करी, मेडिटेशन, एमवे का न्यूट्रलाइट लिव 360 जर्नी भी करी है. वो अपनी खुद की लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं करी है, बट लोगों की भी लाइफ ट्रांसफॉर्म करी है. उनको पता है, ही इज नोन फॉर हिज कमिटमेंट, अनवेवरिंग कमिटमेंट टुवर्ड्स हेल्दी लाइफस्टाइल and his eagerness to share his rich knowledge with his community. So, and he continually seeks to enhance his wellness routine and push the boundaries of his performance. तो देखिए वो अपने गोल्स और अपनी बाउंड्रीज को खुद ही कंटिन्यूसली आगे बढ़ाते रहते हैं. तो इन सब से हमें क्या पता लग रहा है कि ये कौन है. फाइनल, ही एक्सपायर्स टू एक्सपैंड हिज इन्फ्लुएंस एंड मेंटरशिप विद इन द वेलनेस कम्युनिटी. अब ये देख रहे हैं कि मैं कैसे और ज्यादा अपना
इम्पैक्ट बढ़ाऊं, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाऊं विद इन द वेलनेस कम्युनिटी। तो क्लियरली ये D4 है, इनकी कमिटमेंट भी आया है और इनकी कॉम्पिटेंस भी आया है। तो अब आप सोचिए कि एक एक ड्राइवर है, माइकल शूमाकर, दुनिया के बेस्ट ड्राइवर, उनको तो हम गाड़ी चलाना नहीं सिखाएंगे ना, तो इनको हमने गाड़ी चलाना नहीं सिखाना, हमने ज्ञान नहीं देना, है ना। तो लेकिन इनके एक कोच हैं, क्योंकि मान लीजिए ये आपकी टीम में है, उनके कोच का नाम है सुनीता। ओके, तो सुनीता से मिलते हैं। सुनीता कहती हैं, हे राहुल, मैं तो आपकी जर्नी को फॉलो कर रही हूँ वेलनेस में, एंड आई मस्ट से, मुझे कहना ही पड़ेगा कि आपकी जो डेडिकेशन है और आपकी जो अचीवमेंट्स हैं, दे आर ट्रूली कमेंडेबल। देखिए एक चीज याद रखिए, जो लोग D4 होते हैं ना, कई बार वो हमसे भी बेहतर हो सकते हैं और हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, इट इज एब्सोल्युटली ओके। हमारा उसी में बड़प्पन है, यू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल, कितने स्पोर्ट्स एथलीट्स हैं वो अपने कोचेस से बेटर खेलते हैं, सो इट इज एब्सोल्युटली ओके, एब्सोल्युटली ओके। Yeah, we can build a good relationship, सेठी साहब, you're perfectly right. शकील एकदम ठीक, D4 और S4 स्टाइल होना चाहिए। तो अदिति कहती है, मैं तो फॉलो करती हूँ आपको, आपकी वेलनेस जर्नी बहुत अच्छी है, आपकी डेडिकेशन, आपकी अचीवमेंट, दे आर कमेंडेबल, है ना। और दोस्ती के रूप में बातें हो रही हैं, आप देख सकते हैं चाय के कप पे बात चल रही है। राहुल कहता है, थैंक यू सुनीता, वेलनेस तो मेरा पैशन है कई सालों से, और मैं हमेशा ईगर रहता हूँ कि मैं अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस औरों के साथ शेयर करूँ। तो कहीं ना कहीं वो बता रहे हैं कि यार मैं ऐसा कुछ देख रहा हूँ कि जैसे आप कर रहे हो ना, मैं भी ऐसा कुछ करूँ, कुछ साइंस दे रहे हैं हल्के से सटल। ओके, तो सुनीता कहती है, राहुल, कभी आपने सोचा है कि आप अपना जो पैशन है इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ वेलनेस के लिए? तो राहुल ने बोला, एक्चुअली मैंने सोचा है सुनीता, सच बताऊं तो मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ काफी टाइम से, और मैं भी एक वेलनेस कोच बनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि शुरुआत कैसे करें। मैं तो योगा वगैरह कर लेता हूँ। तो सुनीता ने बोला कि राहुल, आपकी जो एक्सपर्टीज है और आपकी जो कमिटमेंट है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक एक्सीलेंट वेलनेस कोच बनेंगे। एक चीज एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आपका ये जो ड्रीम है इसको रियलिटी में कैसे हम कन्वर्ट करें। और फिर कुछ टाइम के बाद सुनीता उनसे बोलते हैं कि राहुल, इमेजिन करो कि कितना एक बड़ा इम्पैक्ट तुम एज अ वेलनेस कोच लोगों पे डाल सकते हो। आप वर्कशॉप्स लीड कर सकते हो, लोगों को मेंटर कर सकते हो, पॉजिटिव चेंज ला सकते हो कम्युनिटी में। राहुल ने बोला कि यार ये तो जस्ट साउंडिंग इनक्रेडिबल, बहुत अच्छा साउंड कर रहा है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अबाउट द अपॉर्चुनिटी टू एम्पावर अदर्स ऑन देयर वेलनेस जर्नी। तो आप उनसे अपनी अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं। सुनीता कहती हैं, हाउ अबाउट ऐसा करें कि कुछ इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करें और ऐसे ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करें जो कि बेनिफिट कर सकते हैं आपकी गाइडेंस से एंड इन आपकी लीडरशिप से इन वेलनेस में। तो हम क्या कर रहे हैं साथ में, एज अ बिजनेस ऑल्सो वी आर ट्राइंग टू मे बी हैव हिम क्रिएट अ लिस्ट, आइडेंटिफाई पीपल सो दैट ही कैन हिट द ग्राउंड रनिंग, स्टार्ट कर सकें। तो राहुल कहता है, ओके, आई एम ऑन बोर्ड, आई स्टार्ट बाय रीचिंग आउट टू माय नेटवर्क। मैं अपने नेटवर्क से बात करता हूँ और देखता हूँ कौन इंटरेस्टेड है मेरे साथ एक नई जर्नी शुरुआत करने के लिए, एंड मे बी ही विल मेक अ ग्रुप हु विल स्टार्ट ऑन द न्यू न्यूट्रीलाइट 100 डे जर्नी, राइट। फिर सुनीता कहते हैं, राहुल, रिमेंबर यू आर इन द ड्राइवर सीट ऑफ योर वेलनेस कोचिंग जर्नी, आई एम हियर टू सपोर्ट यू। आप ही ड्राइवर सीट पे हैं, मैं बस इधर हूँ आपको सपोर्ट करने के लिए। कुछ भी मैं अगर आपके लिए कर सकती हूँ तो आप मुझे बताइएगा, राइट। तो क्लियरली हमको क्लैरिटी आ गई है कि राहुल जो है वो D4 हैं और सुनीता जो है S4 की तरह उनसे बात कर रहे हैं। विपासना, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो फटाफट से फाइनल रैपिड फायर राउंड ऑफ द डे, कॉफी विद मगन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, और पहला सवाल कौन करेंगे? देखिए, Rahul's high competence and commitment suggest he is at which development level? Clearly. D4. Anas and Amira, आपने लिखा है डायरेक्शन एंड सपोर्ट। देखिए, इसमें डायरेक्शन भी लो है एंड सपोर्ट भी लो है, लेकिन अभी सवाल था कि वो कौन से डेवलपमेंट लेवल पर हैं, और उसका सही जवाब दिया है दरायस ने। एक्सीलेंट, बहुत जोरदार तालियां दरायस एंड नीलेश, बहुत बढ़िया। एंड सेठी साहब, वंस अगेन अ सिक्सर,
बहुत 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 अच्छे, छा गए आप लोग, छा गए छा गए छा गए छा गए छा गए। कैसे आपने आंसर पहले फीड करा है, टक से कर देते हैं। ओके, अगला सवाल। एवरीबॉडी राइट, गणेश यूर राइट, सुनित्रा यूर राइट, समीर यूर राइट, मनीष। मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट स्लाइड, देखिए फटाफट देखिए, अपने पास समय कम है। Manoj, you are right. Asha, you are right. Meenal, absolutely right. Chaudhary साहब right. Raghuram, you got it. Excellent Raghuram, बहुत अच्छे। शांतनु आप right हैं। SNS आप भी ठीक हैं, right बोला आपने। चेरियन, you are also right. प्रशांता, प्रदीप, भूपेंद्र, प्रोचुल, सुरेश, हीरा, मृगांका, oh once again मृगांका, I really like your name. संकेत बहुत अच्छे बहुत अच्छे, yes. समरेंद्र बहुत बढ़िया। डॉक्टर कल्पना वाजपेयी, दक्षा एब्सोल्युटली राइट, बहुत अच्छे। सत्या यूर राइट, भास्कर राइट। तो मैं सबके नाम नहीं ले पा रहा हूं बट बहुत अच्छे। सेठी जी हिट 7 sixes on 6 balls, चेक मी। सेठी जी हमारे D4 नहीं, ये D6 है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर ये था। अब मैं जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, तो गेट रेडी एवरीबॉडी, गेट रेडी। एंड ओ, मैंने तो क्वेश्चन नंबर 2 डाला ही नहीं अभी, अभी डालूंगा। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 ही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 आने वाला है। 1 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 2, हेमंत ने बोला डी। डी, द डेलीगेटिंग स्टाइल इज बेस्ट यूज विद इंडिविजुअल्स हु आर। नहीं, डी नहीं, डी नहीं, डी नहीं, डी नहीं, डी नहीं, नहीं नहीं नहीं, डी नहीं। ये कैसे हो गया? किसने बोला डी? हेमंत नहीं, अभय एंड मधु, डी नहीं आंसर। अग्रवाल जी नहीं, डी नहीं। देखिए रश्मि, ए नहीं। ध्यान से पढ़िए, देखिए क्या जो डेलीगेटिंग स्टाइल है, मतलब S4 स्टाइल है, वो किसके लिए बेस्ट है? किसी उस इंसान के लिए जो कि नया है वेलनेस में अपनी जर्नी में, या उसके लिए जो कि हाईली स्किल्ड है, हाईली मोटिवेटेड है, जैसे कि राहुल, या जिसकी कमिटमेंट कम है, या अनश्योर है। तो डेलीगेटिंग स्टाइल तो बी के लिए है ना, बी के लिए है, समझे? तो मोहम्मद एजाज, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट आंसर। कुमार संभव, बी, यू आर राइट, गुड जॉब। अनुज एंड शिवानी, वेल डन, वेल डन। सेठी साहब चौथे नंबर पे आ गए अब। बट नथिंग बीट्स यू सेठी साहब, नथिंग बीट्स यू। सो द राइट आंसर इज बी, बी 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 बी। मधुमिता, डी नहीं, बी, बी बी बी। शक्ति प्रसाद, आई लाइक जो आपने इसमें बड़ा स्पेशल फॉन्ट करा है। महाश्वेता, यू आर राइट, बी। रोमा राइट, एब्सोल्युटली। संजय, डॉक्टर कल्पना वाजपेयी, हेल्थी लिविंग, ए नहीं, ए नहीं, बी इज द राइट आंसर। मनीषा, यू आर राइट। अंचला, यू आर राइट। सविता राइट। सीमा, सुजीत, संध्या, मिनल, रश्मि, रश्मि पचनंदा, गुड टू सी यू अगेन, गुड टू सी यू अगेन। संगीता, ए नहीं, संगीता ए नहीं, प्लीज ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन क्या है। विनोद, बी, यू आर राइट। दिलीप, यू आर राइट। भूपिंदर एंड हरप्रीत, गुड टू सी यू अगेन, यू आर राइट। नीलेश, डीबी क्या? डीबी, डीबी नहीं, बी 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 बी। नीलेश, ए नहीं। श्रीनिवास, रीना, यू आर राइट, बी। उपासना, एस तो ऑप्शंस में नहीं था। आप क्या कहना चाह रही थी? S4 कहना चाह रही थी? अगर S4 कहना चाह रही थी तो ठीक है। शकील, नहीं, ए नहीं होएगा मेरे भाई। शकील, बी होएगा। राइट आंसर इज बी। चेरियन, बी 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 बी। ओके, मनजीत सिंह ग्रोवर, बहुत अच्छे। फट्टे चक दिते तुसी सर, और पाजी चक दे फटे। थैंक यू, मीन्स अ लॉट। ओके, मैं भी भावनाओं में बह जाता हूं, हमें आगे बढ़ना है। मृगांका कहती है सेठी सर को क्वेश्चन पहले से लीक हो गया है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, लीक कर सकते थे कुछ ले दे के शायद, बट अब तो उसका समय निकल गया है। भास्कर जी थैंक यू, भास्कर जी थैंक यू। तो मैं भी भावनाओं में बह रहा हूं। let's stick to this session, okay, because we are almost on the time now. Okay, we may extend by 5-7 minutes today. Question number 3 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। मंजीत सिंह कहते हैं मैच फिक्सिंग नॉट अलाउड। एब्सोल्युटली राइट मंजीत जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो राहुल अपना एक्सपीरियंस कैसे लेवरेज कर रहा है?
How does Rahul leveraging his experience for community learning exemplifies S4? Right answer है C. अबे मधु B नहीं. C is the right answer. Sethi Saab, once again you got it. Chak de phate paji, तुसी great हो. Rahul B nahi, C. Anuj and Shivani, C. Absolutely, you got it. Rashmi, it is C. It is C. बहुत बढ़िया. So first three winners, Sethi Saab, Anuj and Shivani, and Rashmi. And then we've got Bhavani C. Jagmeet, नहीं मेरे भाई B नहीं. C होएगा मेरे भाई, ध्यान से पढ़ो. Hemant C. Absolutely right. Hemant, good to see you again. Madan Lal जी, दोबारा देख के अच्छा लगा. Satya, good. C, 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 C. बी नहीं. संजीव एंड रिंद की थोड़ा सा आपको ध्यान रखो. बी नहीं है, बी नहीं है. पैसिव थोड़ी पार्टिसिपेंट है वो तो एक्टिव पार्टिसिपेंट है ना. पैसिव तो वो जो नहीं कर रहा पार्टिसिपेट. सो राइट आंसर इज सी. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. थैंक यू सेठी साहब. थैंक यू फॉर योर encouragement also to me. Appreciate it. Okay, next question. Screen पे आ गया. Question number 4. Why is mentorship important for someone at Rahul's level? Mohammad Ejaz, you are right. Very good. Pratap and Deepa, you are also right. Super. भूपेश एंड किरण नहीं, उनकी डिमिनिश थोड़ी करेगा, एनहांस करेगा, डिमिनिश नहीं करेगा. सो मोहम्मद, एजाज, प्रताप एंड दीपा एंड कुमार संभव. B4 कहां से आ गया? बी इज द राइट आंसर. बी इज द राइट आंसर. कुमार संभव. आई थिंक 4 शायद आपने गलती से दबा दिया, बट बी इज द राइट आंसर. आई गॉट इट. बहुत अच्छे कुमार. एंड सिंस थोड़ा कंफ्यूजन है तो मैं अनस और हमीरा को भी इसमें इंक्लूड करूंगा. बहुत अच्छे. वेल डन. यू गाइज आर जस्ट सुपर्ब. सुनील, अनुज, सेरी साहब, दरायस, यू राइट. अरुण, यू मोस्ट वेलकम अरुण. भवानी, गुड. राहुल, सीमा, बहुत अच्छे. Keep going. बहुत बढ़िया. You got it. Each one of you now is right. Sandhya, Manohar, Ganesh, Naseem, each one of you. Oja Saab, Sangeeta Agarwal, right answer. Sangeeta, happy to see the right answer from you. Dilip Kumar Oja, Abhay and Madhu. Yes, Sujit, Dr. Ram Usha. Lot of doctors here in the session. This is amazing. Okay. Faraz and Nadira, you are absolutely right. Santosh, you're right. Okay. Final questions on your screen. Okay. Yes, Dr. Kalpana Vajpayee, you're right. You're absolutely right. Dr. Ajit says we are highly inspired. Thank you, Dr. Ajit. Okay, final question on the screens. Please be careful. ध्यान से पढ़िएगा before answering. Right answer करना ज्यादा जरूरी है बजाय कि जल्दी करने के, है ना. 1, 2, 3, go. Sunita's role with Rahul focuses on, and the right answer is Manjeet Singh Grover Saab, you're right. B. Mohammad Ejaz, once again, छा गए Mohammad Ejaz आप तो. Pratap and Deepa, you also. बहुत बढ़िया. So Anas and Hamira, okay, very good. So Manjeet Singh Grover, Anas and Hamira, Ejaz and Pratap and Deepa, super. City Saab number 5 पे आ गए. Okay, all right, excellent. All right, guys, with that we come to the final piece. आप अंडरस्टैंडिंग कर चुके हैं क्या है. मैं आपको क्विकली समय देना चाहता हूं. We can have 2 to 5 minutes for quick Q&A. अगर आप लोगों के लिए कुछ सवाल हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, चैट में डाल सकते हैं. कुछ क्लैरिफिकेशन है. टाइम इन माय वॉच इज 9:05 right now, and I think if we can close it by 9:10. Thank you Lohit, thank you so much. Thank you. So are you. Thank you Savita ji. Thank you. Oh, thank you Mr. Magan, you are a champion. Thank you Savita. Thank you Cherian. Why? Okay, Chandan says why a D4 needs a wellness coach. देखिए, बेस्ट से बेस्ट जो खिलाड़ी होते हैं उनके कोचेस होते हैं, है ना. क्योंकि कहीं ना कहीं पे हमको अकाउंटेबिलिटी तो होनी पड़ेगी ना.
तो अगर आप जिम में भी जाते हैं और आपकी अच्छी बॉडी है, सब कुछ है, फिर भी एक कोच आपको ऑब्जर्व करता है, आपकी फॉर्म बेहतर बनाता है, तो इसलिए जरूरी है। जैसे आप अपने बिजनेस में शायद D4 हैं, लेकिन फिर भी हमारी अपलाइन ही है, राइट? और कंपनी भी है, कंपनी भी हमको गाइड करती रहती है समय समय पर। बहुत अच्छे राजेश, थैंक यू अनुज, थैंक यू शीला, त्रिवर वंदन टू द ग्रेट गुरु मगन कालराव, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छी बात की, मेरे दिल को छू लिया, बहुत अच्छे। ये सब टूल्स आपको कब मिलेगा? देखिए, जो मैंने आपको क्लाइंट असेसमेंट टूल बताया, आज आपको एमवे ईमेल कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा। और वो एक क्वेश्चनेयर भी ईमेल करेंगे जिसमें आपका फीडबैक वो लेना चाहेंगे और चेक करना चाहेंगे आपको कितना समझ में आया। तो ये दोनों चीजें आपको आज ही मिल जानी चाहिए। मदन लाल, थैंक यू मदन लाल, एंगेजिंग सेशन, थैंक यू सो मच, थैंक यू मधु मित्ता, थैंक यू सो मच मगन जी फॉर दिस वंडरफुल सेशन। हम सब मगन हो गए, हाँ मैं भी मगन हो गया आपके साथ, थैंक यू। यू वेलकम प्रदीप जी, थैंक यू अंजू, थैंक यू सो मच। आप लोग अगर लिंक्डइन पे हैं या गूगल पे हैं या फेसबुक पे हैं तो कनेक्ट कीजिए। जगमीत सिंह, फाइनल क्वेश्चन, मगन इज व्हाट टाइप बेस्ट कोच? 1 yes 2 x बोले तो पता नहीं, मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आया, बट आई एम श्योर इसमें थोड़ा थोड़ा आपने ह्यूमर यूज करा है, राइट? बट थैंक यू महाश्वेता, थैंक यू सो मच, थैंक यू श्वेता, थैंक यू अंशुला, थैंक यू सो मच संगीता, thank you Sethi Saab, it was fun and learning at the same time. Yes, thank you so much, thank you, well done. Excellent. I'm just trying to going through the chat so that I don't miss a question. Okay. Faraz and Nadira says, I have a question. How do we get list of client where we could find client? I'm sure आपके अपलाइन और एमवे आपको इसमें मदद कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टिंग के काफी टूल्स होते हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और आजकल तो सोशल मीडिया भी है, तो जो भी आपकी कंपनी का पॉलिसी और ट्रेनिंग है उसको फॉलो कीजिए, अपने अपलाइन को फॉलो कीजिए और आपको ये पता लगेगा। बट थैंक यू फॉर आस्किंग, ये सवाल पूछना बहुत अच्छा था, आपने अच्छा सवाल पूछा। यू वेलकम नसीम, विनोद वेलकम, दिलजीत जी थैंक यू सो मच, सुपर्ब। वाह भूपेंद्र, एनर्जी पैक्ड, यस आप लोगों की भी एनर्जी आ रही है मुझे एज अ वाइब, चैट में आ रही है, सुन नहीं सकता बट आई कैन फील इट। और एनर्जी की यही बात होती है, यू कैन फील इट, है ना? ओके भास्कर, बहुत अच्छे, थैंक यू भास्कर, थैंक यू अभय, थैंक यू। ओके, यू लव द होल सेशन एंड आई लव यू अभय एंड मधु, बहुत अच्छे, थैंक यू। Anas and Amira, you're most welcome. Okay, next question. Any customers do not share pics and BCs, or you mean because, okay, busy, and after 2 months they slip away. How to keep them on track being in different cities? Oh हाँ, देखिए जो रिमोट हमारे क्लाइंट्स हैं उनके साथ थोड़ा सा चैलेंज हमेशा रहता ही है। तो मेरा तो सुझाव ये रहेगा सुरुचि जी कि सबसे पहले तो आपको इतना उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा से बिल्ड करना है कि एक एक रिलेशनशिप अच्छा बिल्ड हो, उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम्स आप देखेंगे कम हो जाएंगी। जहां पे रिलेशनशिप ठीक से बिल्ड नहीं हुआ ना, वहां पे शायद ये चीजें आ सकती हैं। बाकी आप अपने अपलाइन से बात करें, वो भी आपको मदद करेंगे इस बारे में। थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। डॉक्टर अजीत कुलकर्णी सेज टू कवर ब्लाइंड स्पॉट्स। आई डोंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन सर, आप दोबारा अगर एक बारी पूछें क्लैरिटी के साथ। थैंक यू शकील, थैंक यू मयूरी, थैंक यू अरुण, थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू टू से दिस। Rover Saab, so now our turn to perform. Yes, now it is your turn to perform. Upasna, thank you very much. Thank you. Thank you, Dr. Ganesh and Bhagyavati. Okay, Shakti says your session for 1.5 hours is short. It should be a full day, very informative and can be applied straight away with my clients. Sure, मैं एमवे को ये फीडबैक दे सकता हूँ, आप भी उनको ये फीडबैक दे सकते हैं। You're welcome, Darius. Wonderful, Darius. Motivating, captivating, clear to understand. Thank you. Enjoyed coffee with Magan. I'm still enjoying. Thank you. Party two. Yes, कल हमने पार्टी भी करी थी। Okay. Roma का क्वेश्चन है, what is the next step
regarding way ahead to take it on next level. As they said, some more course, can we get details? Yes, I'm sure Vaishali and the team, Hitaishi and the team, जो पूरी marketing team है, L&D team है, वो आपको पूरा plan बताएंगी कि आगे क्या है. जैसा सुबह अजय ने भी बोला कि हम कुछ सेशंस करेंगे जिसमें आपका वो इवैल्यूएशन और जो भी क्राइटेरिया है कंप्लीट करने का, उसको कंप्लीट करने में मदद करेंगे. तो वो होएगा, वो आपको बता देंगे. Thank you, Seema ji. Thank you, Amrita. Thank you, Savita. Thank you, Bhupesh. Thank you so much. Yes, Savita, you're right. Every coach has a coach to have more coaches. Good one. Reena, thank you, Reena. Thank you, Prabha. Okay, Jagmeet says, Magan is which type of coach? Okay, best, amazing, fabulous, all of the above. All of the above, Jagmeet, all of the above. I love you, Jagmeet. Thank you for that. Okay, thank you, Shripa. Thank you, Gira. Thank you, Pratap. Thank you, Proto. Thank you, Sanket. Thank you, Manoj. Thank you, Rashmi. Thank you. Okay, Sheena ka question है, is the assessment tool also to delegate the development levels? Assessment tool जो है ना, वो आपके यूज के लिए है. मतलब ये कि हम कितने अलग अलग तरीके के लोगों से मिलते हैं, है ना. अब देखिए क्या असेसमेंट टूल क्या करेगा. सबसे पहले तो मेरे को मदद करेगा ये जानने में कि मैं जिन लोगों से जो मेरे 100 डे की जर्नी पे मेरे साथ हैं या मैं जिनको लाना चाहता हूँ वो किस लेवल पे हैं, डेवलपमेंट लेवल क्या है, ताकि जब भी आप उनसे बात करें, उनसे मिलें, उनको मैसेज करें, तो आप उस तरीके का कम्युनिकेशन कर सकें, तो उनके साथ ज्यादा फिटमेंट अच्छा होगा, है ना. इसके लिए असेसमेंट टूल है. और आपको खुद यूज करना है. थैंक यू भक्तु, थैंक यू सो मच, यू मोस्ट वेलकम. अर्चना जी, थैंक यू सो मच. राजेश, थैंक यू. Okay, Bhavani says the movie always makes super duper record with great kind of climax, which makes house in hearts. Magan ji, your both sessions are more than this. So proud to be part of this event. Love you, Sir ji. Love you too, Bhavani ji. Proud of you. Thank you, thank you, thank you so much. You're very kind to say that. फराज का फिर से वही सवाल है कि हाउ आई फाइंड क्लाइंट लिस्ट. सर, क्लाइंट लिस्ट मुझे नहीं पता आप क्या पूछना चाह रहे हो कि हम क्लाइंट कहाँ से लाएं या प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट कैसे बनाएं. तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप सोशल मीडिया का यूज करें, प्रोस्पेक्टिंग इवेंट्स करें और अपने अपलाइन से भी बात कर सकते हैं. वो आपको ज्यादा बेहतर बता सकते हैं इस बारे में. क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन आपके जो अपलाइन है वो हैं, आप उनसे बात कर सकते हो और आप कंपनी में भी सपोर्ट के लिए बात कर सकते हो. श्वेता, थैंक यू. वीरा, थैंक यू सो मच. सुरुचि, थैंक यू. Thank you, Nilesh. Thank you, Santoshi. Achla, coffee with Magan was wonderful. Thank you. Okay, we are way ahead of our time. I think we have to now go. Darius, thank you. Thank you for your kind words. You're super. Okay, great, guys. I'm so sorry I'm not able to now answer all your questions. Okay, but one question says, what is the next step for certifications? I think Amway आपको बताएंगे, वैशाली बता देंगी. Please say that if any further questions you all can direct in WhatsApp group and I'll make sure to address them and close. Okay, वैशाली मुझे direct message भेजा है. ये बोलने Yes, Magan, since we've overshot time, Yeah. just wanted to tell सारे participants को कि अगर आपको और further questions हैं तो आप प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कीजिए एंड वी विल मेक श्योर कि वो मगन के पास पहुंच जाए. सुपर सुपर. थैंक यू वैशाली. देखिए इसलिए D4 को S4 की जरूरत होती है. उनको भी जरूरत है मुझे ट्रैक पे रखें, टाइम पे रखें. सो थैंक यू सो मच. सो इतने पैसे में इतना ही मिलेगा. Thank you very much, everybody. Completely my honor, my privilege to be with all of you. I wish you all the best and thank you very much. Thank you, Vaishali. Over to you. थैंक यू सो मच मगन. इतने वंडरफुल सेशन जो आपने हमारे लिए कंडक्ट किया है. आपकी एनर्जी बहुत ही इन्फेक्शियस है और आई होप कि हमारे पार्टिसिपेंट्स भी इतने ही एनर्जी के साथ अपने क्लाइंट्स को सक्सेस महसूस कराने के लिए एक्साइटेड हैं. तो हम आपको इस समय बताना चाहेंगे कि हम आपके साथ 1-2 सेशंस और स्केड्यूल करेंगे जल्दी, सम की क्वेश्चंस और आपके असाइनमेंट्स को डिस्कस करने. सारे डिटेल्स व्हाट्सएप ग्रुप पे फ्लोट किया जाएगा. और अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक क्वेरीज हो किसी भी सेशन के रिलेटेड या इस सेशन के रिलेटेड,
तो आप वो भी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं और वो हम सभी को एड्रेस करेंगे ये FAQ सेशंस में। सो विद दिस मैं सभी को थैंक करना चाहूंगी। Thanks so much everyone for participating in TTT so wonderfully, and thank you so much, Magan. Have a great rest of your day. Thank you, Vishali, for the opportunity. All of you, all the best. Have a wonderful day. Bye-bye.